السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے ناول کالیداس کے 5ویں حصے کے ساتھ، جو کہ طنز و مزاح، فائٹنگ اور ماورائے دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عمران کو ہوش آیا تو اسے اپنے ارد گرد گہری تاریکی محسوس ہوئی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو پھر بھی اندھیرا ہی رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہونے لگے اور اس نے محسوس کیا کہ پتھریلی زمین پر ہے۔ اس نے اپنے جسم کو حرکت دی اور آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھا۔ اسے دونوں جانب ہاتھ پھیلائے اور پھر ہاتھوں کے نیچے آس پاس کی جگہ پر پھیرا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ ناہموار سنگی فرش پر موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے یاد آ گیا کہ ایک باغ میں اندھیرے کے سبب وہ درخت کے تنے سے ٹکرا کر گرا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کوئی خبر نہ رہی تھی۔ باغ کا واقعہ یاد آتے ہی اسے جھولے اور نمانے کی فکر ہوئی۔ چڑھے دہشت بھرے لہجے میں اسے پکارا تھا اور اس کی مدد کے لیے لپکا تھا، جس کے نتیجے میں وہ ایک درخت سے ٹکرا گیا تھا۔ چند لمحوں تک عمران سوچتا رہا کہ یہ جگہ کہاں ہے، جبکہ وہ باغ میں بے ہوش ہوا تھا۔ باغ میں پراسرار طور پر اچانک اس کے ہاتھ سے ٹارچ گر کر بجھ گئی تھی، اور اندھیرا ہوتے ہی وہاں عورتوں مردوں کی خوفناک آوازیں ابھرنے لگی تھی۔ ان آوازوں نے جھولے اور نمانی کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اندھیرے میں عورتوں اور مردوں کے نظر نہ آنے کے سبب ہی اسے اندازہ ہوا تھا کہ چیخنے والی نادیدہ اور ماورائی قوتیں تھیں، اور یقیناً پنڈت کالیداس نے اپنے غلام بدروحوں کو انہیں دہشت زدہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ گویا یہ بے ہوشی کے دوران اسے یہاں لایا گیا تھا۔ یہ اندازہ ہوتے ہی عمران اٹھ کھڑا ہوا، لیکن دوسرے لمحے ہی اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکل گئی۔ اس کے سر اوپر کسی پتھریلی چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس نے سنبھل کر دونوں ہاتھ بلند کیے تو محسوس ہوا کہ سر پر کوئی پتھریلی چھت ہے جو فرش سے تقریباً 5 فٹ بلند تھی۔ پھر اس نے پیش قدمی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، لیکن بازو دراز کر لیے۔ 2 قدم چلنے کے بعد اس کے ہاتھ دیوار سے ٹکرائے تو وہ رک گیا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی ناہموار اور پتھریلی تھی۔ عمران نے ایک اندازہ قائم کیا اور پلٹ کر دیوار کی سمت بڑھا تو اس طرف بھی دیوار تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ کسی غار میں ہے، اور یہ اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ دونوں جانب کی دیواروں میں 6-7 فٹ کا فاصلہ تھا، گویا باقی سمتوں میں غار کا دانہ ہو سکتا تھا۔ چاچا وہ دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف بڑھنے لگا۔ ابھی اس نے تیسرا قدم اٹھایا تھا کہ اس کا پاؤں کسی نرم اور گداز چیز پر ٹکرایا، اور اس کے دوسرے ہی لمحے غار ایک خوفناک چیخ سے گونج اٹھی۔ چیخ کسی عورت کی تھی، اور عمران کے پاؤں ٹکرانے سے شدید اذیت پہنچی تھی۔ عمران نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن تاریکی میں کچھ نظر نہ آیا۔ چند لمحوں بعد اس کی چیخ کی بازگشت معدوم ہو گئی تو وہ جھکا اور فرش پر ہاتھ سے اس عورت کو ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ کسی انسانی جسم سے ٹکرانے کی بجائے کسی تربوز جیسی گول چیز سے ٹکرایا، اور اس نے وہ چیز اٹھا لی۔ پھر اس چیز پر اس نے ہاتھ پھیر کر اس کی ماہیت کا جائزہ لیا تو اس کے جسم میں خوف آمیز سنسناہٹ سی پھیلتی چلی گئی۔ وہ ایک استقبالی انسانی کھوپڑی تھی۔ دوسرے لمحے عمران نے کھوپڑی گھما کر آگے پھینک دی، لیکن اس کا نتیجہ غیر متوقع نکلا۔ کھوپڑی فرش پر جا گری تھی اور اس قدر زوردار دھماکہ ہوا تھا جیسے کوئی ہینڈ گرینیڈ پھٹا ہو۔ اس کے ساتھ ہی غار میں عجیب سی خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے 20 عورتیں اور مرد کسی کی موت پر رو رہے ہوں۔ وہ آوازیں ایسی طرف سے آ رہی تھیں جس طرف کھوپڑی گری تھی۔ عمران کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نابکار نے میرے شوہر کو مار ڈالا ہے، پکڑ لو اس قاتل درندے کو! دفعتاً کسی عورت کی چیختی آواز بلند ہوئی، اور پھر یوں لگا جیسے پتھریلی زمین پر بہت سے افراد دوڑ رہے ہوں۔ عمران بوکھلا گیا۔ اس نے دیوار سے پشت لگاتے اپنی پتلون کے اندر ہاتھ ڈالا جس میں ران کے ساتھ پلاسٹک کی تھیلی بندھی تھی۔ اس نے تھیلی کھول کر اس میں رکھا سگریٹ لائٹر نکالا۔ دوڑنے کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ عمران تیزی سے لائٹر روشن کیا اور سامنے دیکھا تو غار میں کوئی نہ تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر وہ انسانی کھوپڑی فرش پر پڑی تھی، اور وہ صبح صحیح عالم تھی۔ کھوپڑی سے آگے غار میں مکمل تاریکی تھی اور غار کا دانہ نظر نہ آ رہا تھا۔ عمران نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو اس طرح بھی اسے کچھ فاصلے تک روشنی نظر آئی، اور اس سے آگے تاریکی تھی۔ لائٹر جلتے دوڑنے کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں، اور اب غار میں سناٹا تھا جس کے سبب عمران کو اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ عمران نے چند لمحوں تک غور کیا، اندھیرے میں سنائی دینے والی آوازیں کہاں گئیں؟ فرش پر وہ جسم بھی نظر نہ آ رہا تھا جس سے پیر ٹکرانے پر خوفناک چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ تجربے کے طور پر اس نے لائٹر بجھا دیا، اور دوسرے ہی لمحے پھر وہی خوفناک انسانی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ نادیدہ عورتیں اور مرد اس سے صرف 3-4 فٹ کے فاصلے پر موجود ہیں۔ اسے دوبارہ لائٹر جلایا تو روشنی پھیلتی نادیدہ آوازیں یکلگ بند ہو گئی تھیں۔ تب عمران لائٹر کی روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ فرش پر پڑی انسانی کھوپڑی مرد کے پاس رک کر اس نے پوری قوت سے اسے ٹھوکر ماری، اور کھوپڑی اچھل کر غار کے تاریک حصے میں جا گری، لیکن اس کے گرنے کے اس مطلب ذرا بھی آواز نہ آئی تھی۔ عمران حیران ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن غار شیطان کی آنت کی مانند طویل ہوتی جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ پراسرار غار کتنا لمبا تھا۔
इमरान ये सोचता हुआ रुके बगैर आगे बढ़ रहा था। अपने अंदाजे के मुताबिक वह कम से कम 100 कदम का फासला तय कर चुका था, लेकिन कार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मजीद 60-70 कदम चलने के बाद इमरान रुक गया। वो समझ गया था कि कार भी मावराई है, और वरना अब तक इसका इख्तिताम हो चुका होता। इसे लाइटर बुझा दिया कि कहीं इसकी गैस खत्म ना हो जाए, लेकिन इसे हैरत हुई कि हस्बे तवक्का लाइटर बुझने पर नादीदा औरतें और मर्दों की आवाज़ें बुलंद नहीं हुई थी और कार में मुकम्मल खामोशी का राज था। इमरान को अब इसमें शुबा भी नहीं हो रहा था कि पंडित कालिदास ने शैतानी कुव्वतों की मदद से इसे अगवा करके यहाँ कार में कैद कर दिया था। अगरचे इमरान की इन कुव्वतों से अभी तक जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचा था, और ये बात इसे रूहानी आमिर सैयद आबिद अली शाह ने भी बता दी थी कि पंडित कालिदास की शैतानी कुव्वतें और गुलाम रूहें इमरान को ना तो दहशत ज़दा कर सकती हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन इस वक्त इमरान को जोली और नुमानी की फिक्र दामन घेर थी। न जाने वो दोनों भी कालिदास के जंगल में थे या माबरे कुव्वतें सिर्फ इसे यहाँ लाई थी। दफातनी से याद है कि उसने फौरन इंटरनेशनल अली को नहर पर पहुंचने की हिदायत की थी। ख्याल आते ही उसने वॉच टाइमर पर नजर डाली। उसे हाथ का झटका लगा कि अभी रात के 11 बजे थे। गोया वो तकरीबन 2 घंटे बेहोश रहा था। अब इसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो नासिर, इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने नासिर अली को कॉल करते हुए कहा, लेकिन किसी लम्हे गुजर गए, वो कोई जवाब न मिला। वो सिर्फ तकरीबन 20 मिनट तक कॉल करता रहा, लेकिन राब्ता नाकाम हुआ। तब इसने ट्रांसमीटर पर नुमानी की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और इसे कॉल करने लगा। हेलो नुमानी, इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान की आवाज़ गाँव में गूंज रही थी, लेकिन इसे मायूसी हुई। नुमानी की तरफ से भी कोई जवाब न मिला तो उसने जोले से बात करने की कोशिश की, मगर वहां से भी कोई जवाब मौसूल न हुआ तो उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसका ज़हन तेज से काम कर रहा था। अलबत्ता नुमानी और जोलिया इसी बाग में थे, तो यकीनन ये कार वहाँ से काफ़ी फासले पर था, और अगर पंडित कालिदास के मन्नत के इलाके में था तो काफिस्तान के दारुल हुकूमत से 200-300 किलोमीटर दूर था। इतना तवील फासले पर वॉच ट्रांसमीटर बेकार था। चंचे इससे अपने लिबास में पोशीदा लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाला और इस पर नासिर अली की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की। हेलो नासिर, इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने कहा, यस इमरान साहब, नासिर अली अटेंडिंग यू। आप कहाँ हैं सर? ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से नासिर अली की आवाज़ सुनाई दी। अरे इतनी देर बाद पूछ रहे हो, पहले कहाँ फंसे रहे थे? इमरान ने पूछा। सॉरी सर, मैं तो काफ़ी देर से आपको तलाश कर रहा हूँ। कई मरतबा आपको वॉइस ट्रांसमीटर पर ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन आपने कॉल रिसीव नहीं की। आपके साथी भी आपके बहुत परेशान थे। ओवर। नासिर अली ने मधुबान लहजे में कहा, तुम कहाँ? इस नहर के पास। ओवर। इमरान ने पूछा। नहर पर तो आपकी हिदायत के मुताबिक 30 घंटे में पहुँच गया था, फिर आपसे रब्ता कायम ना हो सका तो फिर मैंने आपके साथियों को फ़ोन करके सूरत हाल बताई। वो आपको तलाश करने के लिए इस तरफ आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया क्योंकि शांति घर रोड सील कर दिया गया है और इस पर पुलिस और फौज का कब्जा है। सड़क के दोनों अतराफ आप लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू है। फिर मैं आपकी तलाश में नहर की दूसरी जानिब गया। बाग चेक करने के बाद अब मैं वापस जा रहा हूँ। ओवर। नासिर अली ने रिपोर्ट देते हुए कहा, कितने आम मिले हैं बाग में? ओवर। इमरान ने पूछा। सिर्फ एक मशीन पिस्टल और आपकी पेंसिल टॉर्च। ओवर। नासिर अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो इमरान की बात का मतलब समझ गया था। क्या जोले और नुमानी नहीं मिले? ओवर। इमरान ने पूछा। मैं तो अब वहाँ से काफ़ी दूर एक गाँव के पास हूँ। आपके दोनों साथी बाग में नहीं है क्या? वो आपके साथ नहीं थे? ओवर। दूसरी तरफ से नासिर अली ने जवाब देते हुए कहा, बाग में तो थे, लेकिन वह पंडित कालिदास की शैतानी कुव्वतों के हम पर कबला हमला कर देता और मैं बेहोश हो गया था। अब मैं अकेला एक बंदर और तारीख कार में कैद हूँ। सफदर और इसके साथियों के मिशन का क्या रहा? ओवर। इमरान ने जवाब देते हुए आखिर में पूछा। वो अपने मिशन में कामयाब होकर अपने ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। मैंने तो इन्हें नहीं देखा। अलबत्ता सफदर साहब ने बताया था कि टिपर छावनी और मिसाइल प्रोजेक्ट की तबाही की खबरें आ रही हैं। ओवर। नासिर अली ने जवाब दिया। गुड, अब काफिस्तान के कमाने को पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का क्या इंजाम होता है। ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आप कहाँ हैं सर? ओवर। नासिर अली ने पूछा। वॉच ट्रांसमीटर की रेंज से बाहर हूँ, शायद पंडित कालिदास के मंदिर के आसपास किसी गाँव में हूँ। फिलहाल यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो कब तक शहर पहुँच जाओगे? ओवर। इमरान ने पूछा। चूंकि सड़क का रास्ता बंद है, इससे मैं पैदल ही वही इलाके में सफर कर रहा हूँ। अब मैं रुख बदल कर शहर की तरफ जाऊँगा। 2-3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि अब मैं जनूब की जानिब मशरिक की जानिब से शहर में दाखिल होऊंगा। और वह नासिर ने अली से कहा। ठीक है, वो वहाँ पहुंचकर मेरे साथियों को तफसील दे देना कि बल्कि अभी कॉल करके इन्हें पोजीशन बता देना। फिलहाल वो रेस्ट करें, जरूरत पड़ी तो मैं ट्रांसमीटर पर इनसे बात कर लूँगा। तुम काफिस्तान सीक्रेट सर्विस वालों की नकलो हरकत के बारे में मालूम करो और मुझे रिपोर्ट दो। ओवर। इमरान ने हिदायत देते हुए कहा। राइट सर, और के हुक्म? ओवर। नासिर अली ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। यह भी मालूम करना कि हमारे बारे में काफिस्तान सीक्रेट सर्विस को पंडित कालिदास ने इतला दी है या नहीं, और अगर इन्हें मालूम हो चुका है तो वो हमारे खिलाफ कोई और कार्रवाई करेंगे या इत्मीनान से बैठ गए हैं। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा, ट्रांसमीटर ऑफ करके अपने लिबास में छुपा लिया। गाँव में मौत की सी खामोशी फैली हुई थी। इमरान ने चंद लम्हे बाद दोबारा कोशिश करने का फैसला किया और दीवार पर हाथ रखता हुआ आगे बढ़ने लगा। 30-40 कदम का फासला तय करने के बाद वो रुका और उसने सिगरेट लाइटर जलाकर कार का जायजा लिया तो उसे हैरत का झटका लगा।
تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اسے ہوش آیا تھا، گویا وہ غار گلائی میں تھا اور اتنا طویل فاصلہ طے کر کے عمران وہیں آ پہنچا تھا جہاں سے چلا تھا، یا پھر غار بھی ماورائی تھی جس میں داخل ہونے یا باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ عمران کو محسوس ہوا جیسے وہ غار طلسمی ہو اور جادو سے قائم کیا گیا ہو۔ بچپن میں نے ایسی کہانیاں پڑھی تھیں جن میں جادو اپنے دشمن کو طلسمی قید خانے بند کر دیتے اور جبکہ بہادر شہزادہ جادوگر کو موت کے گھاٹ اتارتا تو جادوگر مرتے ہی قید خانہ غائب ہو جاتا تھا۔ عمران نے سوچتے ہوئے لائٹیں بجھا دیں، لیکن اندھیرے ہوتے ہی اچانک غار میں عجیب سی سسراہٹ اور خوفناک آواز سنائی دینے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا اژدہا غار کے فرش پر رینگتا ہوا منہ سے پھنکارے نکال رہا ہو۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لائٹر نکالنا چاہا، لیکن اسی لمحے وہ خوفناک پھنکار بند ہو گئی اور پانی کے زبردست ریلے نے عمران کے پاؤں فرش سے اکھاڑ دیے۔ عمران نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن وہ گر پڑا اور پانی کے ریلے میں بہنے لگا۔ پانی کی سطح اس قدر بلند اور بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ عمران کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور وہ پانی میں غوطے کھانے لگا۔ تاریکی میں کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ عمران بامشکل اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں کامیاب ہوا تو اس کا سر چھت سے ٹکرایا، تب اس پر انکشاف ہوا کہ پانی چھت تک بھرا ہوا تھا۔ پانی کا پریشر اس قدر زیادہ تھا جیسے کافی بلندی سے گہرائی کی طرف بہہ رہا ہو۔ اس پریشر کے سبب عمران کے پاؤں ایک مرتبہ پھر فرش سے اکھڑ گئے اور وہ کسی حقیر تنکے کے مانند پانی کے ریلے میں بہنے لگا۔ اس نے اپنا سانس روک رکھا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ زیادہ دیر تک سانس نہیں روک سکے گا۔ سانس لینے کے لیے پانی سے منہ نکالنا ضروری تھا، لیکن پانی کی سطح چھت کو چھو رہی تھی، اس سے یہ بھی ناممکن تھا۔ پھر وہی ہوا، وہ 5 منٹ سے زیادہ سانس نہ روک سکا اور منہ میں پانی داخل ہوا تو اس کے حواس جواب دینے لگے۔ وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور پھر اس پر غشی طاری ہوتی چلی گئی۔ عمران کو دوبارہ ہوش آیا تو آس پاس کا منظر روشن تھا۔ یہ وہ سیدھا دیواروں سے گھرا ایک چوکور کمرہ تھا جس میں ایک جانب لکڑی کا بند دروازہ تھا، بائیں جانب کی دیوار کے طاقچے میں سرسوں کے تیل کا چراغ جل رہا تھا۔ دیواروں پر مختلف جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، چھت بھی نہایت بوسیدہ تھی اور اس پر جا بجا مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ عمران کے حواس مکمل طور پر بحال ہوئے تو اسے حیرت ہوئی کہ وہ غار سے یہاں کیسے پہنچا۔ وہ کمرے کے فرش پر دراز تھا اور اس کا لباس اور جسم بالکل خشک تھا۔ کمرے کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت کسی نہایت قدیم عمارت میں موجود ہے اور دیواروں پر بنے جانوروں کے نقش و نگار سے معلوم ہو رہا تھا کہ کسی مندر کی عمارت ہے، یقیناً پنڈت کالی داس کا ہی مندر ہوگا۔ عمران نے سوچا اور اٹھ بیٹھا۔ ٹھیک اسی لمحے چراغ بجھ گیا اور ایک ہذیانی ہنسی سے کمرہ گونج اٹھا۔ عمران نے بوکھلا کر دروازے کی طرف دیکھا تو اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ہنسنے کی آواز کسی عورت کی تھی۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے دانتوں سے محروم کوئی بڑھیا ہنسی ہو۔ آواز دروازے کی جانب سے ہی آئی تھی اور ایک لمحہ بعد بند ہو گئی تھی، لیکن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے سے بھی ہنسی والی عورت نظر نہ آ رہی تھی۔ یقیناً وہ کہ بدرو یا چڑیل تھی جو اس طرح ہنستی تھی، جو جیسے ہی بہت زیادہ خوش ہو۔ ابھی عمران اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دوبارہ وہی ہنسی سنائی دی۔ اس مرتبہ آواز عمران کے دائیں جانب سے آئی تھی۔ عمران نے اس طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس جانب کمرے کی دیوار کے پاس ایک استقانی ڈھانچہ کھڑا تھا۔ ڈھانچے کی ہڈیاں اندھیرے میں چمک رہی تھیں جیسے ان پر کرومیم کیا گیا ہو۔ ڈھانچے کی کھوپڑی کی آنکھوں کے سوراخوں میں 2 سرخ نقطے روشن تھے اور وہ حرکت کر رہے تھے، گویا وہ زندہ ڈھانچہ تھا جس کا ایک ہاتھ کمر پر یوں رکھا ہوا تھا جیسے ہاتھ کے پنجے سے جسم کو سہارا دے رکھا ہو۔ کون ہو تم؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے قصیلے لہجے میں پوچھا۔ پنڈت کالی داس کی غلام ہوں، میرا نام پاروتی ہے، ڈھانچے کے منہ کی سوراخ سے نسوانی آواز سنائی دی۔ اوہ، تم کالی داس کی غلام ہو؟ کیا میں اس کے مندر میں ہوں؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مندر میں ہوں اور تمہیں پوجا پاٹ والے کمرے میں دیوتا کے قدموں میں ذبح کیا جائے گا۔ پاروتی کے ڈھانچے نے اپنی کھوپڑی اس بات میں ہلاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ کیا؟ کیوں؟ دیوتا آدم خور ہے، انسانوں کو کھاتا ہے؟ عمران نے دانستہ حیرت سے منہ پھاڑتے ہوئے کہا۔ نہیں مہاراج، کالی داس ہنومان جی کو ہماری بھیंٹ پیش کریں گے، تمہارا مہاراج نے بھینٹ دینے کی قسم کھا رکھی ہے، پاروتی نے جواب دیا۔ بڑا خبیث ہے کالی داس، مجھے بھینٹ چڑھانے سے کیا ہنومان جی کی دم لمبی ہو جائے گی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو نابکار، دیوتا کی شان میں گستاخی مت کرو ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، پاروتی نے غضبناک لہجے میں کہا۔ تم کیسے خون پی سکتی ہو؟ نہ تمہارے دانت ہیں، نہ ہونٹ اور نہ ہی زبان، ایک ہاتھ مار دو تمہاری ساری ہڈیاں بکھر جائیں، اس لیے مجھے غصہ مت دلاؤ، میں بہت ہٹ چمٹ انسان آدمی ہوں۔ عمران نے غصے سے کہا۔ صبر کرو، صبح پتہ چل جائے گا تمہاری بہادری کا، جب مہاراج کالی داس تمہارے خون سے غسل کریں گے تم انگلی تک نہ ہلا سکو گے، پاروتی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتا۔ موم بتی؟ عمران نے اس کے نام بگاڑتے ہوئے کہا۔ موم بتی نہیں پاروتی، اور میں تمہیں یہی بتانے آئی ہوں کہ جہاں سے بھاگنے کا کبھی دل میں خیال تک نہ لانا۔ رات بھر مندر کے اندر اور باہر خون آشام بدروہوں کا پہرا ہوتا ہے، اس کمرے سے نکلتے ہی بدروہیں تمہارا خون چوس لیں گی، جبکہ مہاراج کو تمہارے خون کی ضرورت ہے، اس سے تمہارے خون سے غصہ کرنے کا عہد کر رکھا ہے، پاروتی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا، یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے، مگر یہ بتاؤ کہ میرے 2 ساتھی کہاں؟ عمران نے مصرف بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بھی اسی مندر میں قید ہیں، لیکن پہلے تمہیں دیوتا کی بھینٹ چڑھایا جائے گا اور بعد میں ان دونوں کو، پاروتی نے کہا۔ یہ تو ناانصافی ہے کہ پہلے مجھے ذبح کیا جائے، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، عمران نے سٹ پٹا کر کہا۔ اصل مجرم تم ہو، مہاراج اس دھرتی سے تمہارا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے، پاروتی نے ہنستے ہوئے کہا۔ پاروتی، تمہاری ہنسی بہت پیاری
تمہاری ہے, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. عمران نے پیار بھرے لہجے میں کہا. حکومت میں ایک روح ہوں اور 300 برس سے زیادہ عمر ہے میری. پاروتھی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا. خیر مرضی ہے تمہاری, لیکن مرنے کے بعد میری روح تم سے ضرور شادی کرے گی. تم اپنے آقا کالی داس سے پوچھا کہ وہ مجھے کب ذبح کرے گا تاکہ میری روح آزاد ہو کر تمہیں شادی کی دعوت دے سکے. عمران نے کہا. خاموش ہو احمق آدمی, فضول باتیں مت کرو. کیا تمہیں موت کا خوف نہیں ہے؟ پاروتھی نے غصیلے لہجے میں کہا. نہیں پاروتھی, موت کا خوف ہوتا تو میں یہاں آتا ہی کیوں؟ میں نے نہ موت سے ڈرتا ہوں اور نہ تمہاری شیطانی آقا کالی داس سے. جا اس نابکار سے کہو کہ وہ مجھے ابھی ذبح کر ڈالے. عمران نے غراتے ہوئے کہا تو پاروتھی کا ڈھانچہ یکدم غائب ہو گیا اور طاقچے میں رکھا چراغ خود بخود روشن ہو گیا. عمران پلٹا اور اس نے آگے بڑھ کر لکڑی کے بوسیدہ دروازے پر پوری قوت سے ٹھوکر ماری, لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اچھل کر کئی فٹ دور آ گرا. اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی غیبی قوت نے اس کا پاؤں پکڑ کر پیچھے کی طرف اچھال دیا ہو, مگر عمران کو حیرت ہوئی کہ اتنے زور سے فرش پر گرنے کے باوجود اسے ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی, جیسے وہ فرش کی بجائے ہوا میں گرا ہو. چانچہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دوبارہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دروازے کی طرف ایک غضبناک غیبی آواز ابھری. او نابکار, اگر تو ساری رات بھی کوشش کرتا رہے تو دروازہ نہیں کھلے گا, اس سے آرام سے بیٹھ اور کل کا انتظار کر. آواز نے کہا. ککا کون ہو تم مجھے روکنے والے؟ عمران نے دانستہ ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا. میں لچھمن داس کی روح اور مہاراج کالی داس کی غلام ہوں. اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو آگے بڑھ کر پھر کوشش کرو, اس مرتبہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. غراتے ہوئے آواز میں کہا گیا تو ایک لمحے کے لیے عمران سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. نہیں لچھمن داس, مجھے تم پر پورا یقین ہے, تم اپنی ٹانگیں توڑوانے کا کوئی شوق نہیں, لیکن جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ کس وقت مجھے دیوتا کی بھیٹ چڑھایا جائے گا اور کس کس کے سامنے مجھے ذبح کیا جائے گا, اس وقت تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. اگر تم اتنے ہی طاقتور ہو تو اپنے آقا سے معلوم کر کے مجھے بتاؤ, ورنہ. عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا. ورنہ تم کیا کرو گے اپرادھی؟ لچھمن داس کی طنزیہ آواز سنائی دی. میں خودکشی کر لوں گا اور تمہارا آقا مجھے بھیٹ نہ چڑھا سکے گا اور نہ ہی میرے خون سے غسل کر سکے گا, کیونکہ صبح تک میرا خون جسم میں جم جائے گا. عمران نے کہا. ٹھیک ہے, میں ابھی آقا سے معلوم کرتا ہوں, انتظار کرو. لچھمن داس نے کہا تو عمران نے سر ہلا دیا اور انتظار کرنے لگا. سنو, مہاراج نے جواب دیا کہ کل شام نیا چاند طلوع ہونے پر تمہیں دیوتا کے قدموں میں ذبح کیا جائے گا. اس موقع پر مہاراج کے تمام غلام روحیں موجود ہوں گی اور شہر سے آنے والے مہمان بھی یہ منظر دیکھیں گے تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ ان کا دشمن فنا ہو چکا ہے. 2 منٹ بعد لچھمن داس کی آواز کمرے میں گونجی تو عمران بے اختیار چونک پڑا. مہمان کون ہیں جو ہے مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا. سنر پران اور اس کے چند ماتحت جو کل شام سے پہلے یہاں اڑنے والی سواری پر پہنچ جائیں گے, لچھمن داس نے جواب میں کہا تو عمران نے گہرا سانس لیا. اچھا, اب میرے لیے کھانا اور چائے لے آؤ, مجھے بھوک لگی ہے. عمران دونستانہ لہجے میں کہا. بکو مت, تم یہاں دعوت پر نہیں آئے کہ تمہیں کھانا کھلایا جائے. تم قیدی اور قیدیوں کی خواہش پوری نہیں کی جا سکتی. صبح مہاراج تمہارے کھانے پینے کا فیصلہ کرے گا, فی الحال تم آرام کرو. لچھمن داس نے غصیلی آواز میں کہا تو عمران نے گہرا سانس لیا اور وہیں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. تقریباً نصف گھنٹہ بعد اسے سعادت تنویر اور صدیقی کا خیال آیا کہ وہ ان کے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے. چنانچہ اس نے لباس میں چھپا لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر صفدر کو کال کرنے لگا. جولا اور نعمانی کو ہوش آ گیا تھا اور وہ دونوں خوف و پریشانی میں مبتلا تھے. اس وقت وہ دونوں بوسیدہ دیواروں والے ایک کمرے کے فرش پر بیٹھے تھے. اسی کمرے میں انہیں چند منٹ کے لیے باری باری ہوش آیا تھا. کمرے کا واحد دروازہ بند تھا اور اس کی چھت کے ایک چھوٹے سوراخ سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی. گویا دن کا وقت تھا اور وہ رات بھر بے ہوش رہے تھے. جولا کو بے ہوشی سے پہلے کے واقعات یاد تھے. باغ میں کسی غیبی قوت نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹا تھا اور وہ عمران کی مدد کو پکارتی ہوئی دہشت کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی. نعمانی کے ساتھ بھی کسی غیبی انسان یا کسی بدروح نے اسی طرح کا سلوک کیا تھا اور خوف کی شدت سے اس پر بھی بے ہوشی طاری ہو گئی تھی یا کر دی گئی تھی. کمرے کا واحد دروازہ بند تھا. کمرے کا طرز تعمیر سے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ کسی قدیم عمارت میں تھے اور شاید یہ پنڈت کالی داس کے مندر کی عمارت تھی جس کے بارے میں وہ عمران سے سن چکے تھے. چھت سے مکڑی کے بے شمار جالے لٹک رہے تھے. دیوار پر بھی جالے تھے جن میں مکڑیاں موجود تھیں. انہیں ہوش میں آئے 10-12 منٹ گزر چکے تھے, لیکن ابھی تک ان کے حواس پر گزشتہ رات باغ میں پیش آنے والے واقعہ کا خوف طاری تھا اور اس خوف کے سبب انہیں کچھ کرنے کی ہمت نہ پڑ رہی تھی. مس جولیا, عمران نے ان خوفناک آوازوں کے بارے میں درست کہا تھا کہ پنڈت کالی داس نے کوئی چکر چلایا ہے ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے, کیونکہ مجھے پکڑنے والا کوئی ڈھانچہ تھا جس کے استقانی پنجے تھے. چند لمحوں بعد نعمانی نے آہستہ سے جولیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. ہاں, میرا بازو بھی کسی گوشت پوش سے محروم پنجے نے پکڑا تھا, لیکن انہوں نے عمران کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ چنے سر ہلاتے ہوئے کہا. جی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بدروہوں نے عمران صاحب کو چھوڑ دیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی مندر میں موجود ہو. نعمانی نے چونکتے ہوئے کہا. تو پھر عمران نے ہماری خبر کیوں نہیں لی؟ جولیا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا. شاید
शायद हमारी तरह वो भी किसी कमरे में बंद हो, मैं वॉइस ट्रांसमीटर पर इन्हें कॉल करूं, नुमानी ने कहा। हाँ, लेकिन पहले इस कमरे से निकलने की कोशिश करो, इस मकड़ों को देखकर मुझे होल आ रहा है। जुले ने दीवारों पर मौजूद मकड़ों की तरफ देखते हुए कहा तो नुमानी मुस्कुरा दिया। इन मकड़ों से क्या डरना, ये तो बेजरूर होती है, नुमानी ने जवाब दिया और उठ खड़ा हुआ। उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक दरवाजे पर एक बहुत बड़ी मकड़ी नमूदार हो गई। इसे देखकर नुमानी यकदम रुक गया। जुले ने भी देखा और इसके जिस्म में खौफ की तेज लहर दौड़ गई, क्योंकि चंद लम्हे पहले तक दरवाजे पर कोई मकड़ी मौजूद न थी, लेकिन अब वहां एक बहुत बड़ी मकड़ी नजर आ रही थी। और ये मकड़ी न सिर्फ चूहे के बराबर मोटी और लंबी थी, बल्कि इसकी टांगे भी इस कदर लंबी थी कि इस दरवाजे पर फैली हुई थी, और इसकी चमकदार आंखें नुमानी को घो रही थी। और नापकार दरवाजे खोलने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। दफअतन दरवाजे की जानिब से खौफनाक निस्वानी आवाज सुनाई दी और जोलिया खौफ की शिद्दत से कांपने लगी। यकीनन वो आवाज मकड़ी की थी। तुम कौन हो, नुमानी ने खौफजदा लहजे में कहा। मैं शकुंतला की रूह और महाराज कालिदास की गुलाम हूँ। महाराज के हुक्म के बगैर तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। मकड़ी की गजबनाक आवाज सुनाई दी तो जोले और भी ज्यादा खौफजदा हो गई। नुमानी पीछे आ जाए, ये मकड़ी कोई बदरू है, जोले ने खौफ से अकलाते हुए नुमानी से कहा तो नुमानी खौफजदा निगाहों से मकड़ी की तरफ देखते हुए उल्टे कदमों पीछे हटा और जोले के करीब आकर रुक गया। उस लम्हे खौफनाक मकड़ी यकदम गायब हो गई। इस मंजर ने जोले और नुमानी के आसाब कुशीदा कर दिए। शकुंतला की रूह एक मकड़ी की शक्ल में नमूदार हुई थी। गोया पंडित कालिदास ने दरवाजे पर पहरा देने के लिए एक बदरू को मामूर कर रखा था। वो दोनों काफी देर तक खौफ के मारे खामोश रहे और दरवाजे की तरफ देखते रहे। नुमानी, तुम इमरान को कॉल करने की कोशिश करो, हो सकता है कि वो हमें तलाश कर रहा। उसने बताया था कि इस पर किसी जादू या असर का असर नहीं होता और मावरे कुव्वतों से नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसीलिए पंडित कालिदास ने इमरान के बजाय सुलेमानी पर मावरे हरबा इस्तेमाल किया था। सुले ने आहिस्ता से कहा तो नुमान ट्रांसमीटर ऑन करके इमरान को कॉल करने लगा। हेलो इमरान साहिब, नुमानी कॉलिंग ओवर। नुमानी ने इमरान को कॉल करते हुए कहा। यस इमरान, अटेंडिंग जी ओवर। चंद लम्हों बाद वॉइस ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज़ सुनाई दी। आप कहाँ हैं, आप पर क्या गुजरी ओवर। इमरान इत्मीनान का सांस लेते हुए नुमानी ने कहा। इमरान की आवाज़ सुनकर जोलिया को भी कदर तसल्ली हो गई थी। मत पूछ के दिल पर क्या गुजरी प्यारे, वो कोई शायद गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन अब रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। इसे तुम अपना सुनाओ, मुझे तुम दोनों को तो खूब गुजर रही होगी ओवर। इमरान ने कहा तो नुमानी बेइख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहिब, हम दोनों बदरुओं के जंगल में फंसे हुए हैं और आपको मजाक की सूझी है कि आप आज़ाद हैं ओवर। नुमानी ने पूछा। क्यों नहीं, मैं पैदाइश से लेकर अब तक आज़ाद हूँ ओवर। इमरान ने कहा। शुक्र है कि आप आज़ाद हैं, मगर हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें कालिदास की कैसे आज़ाद कराएं ओवर। नुमानी ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझसे मदद मांगने की बजाय अल्लाह ताला से मदद मांगा करो। आज़ादी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, वो जो अपने नेक बंदों को अता फरमाता है। मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूंगा ओवर। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अहमक आदमी, हमें कालिदास के चंगुल में फंसाकर तुम खुश हो रहे हो ओवर। जोले ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं नहीं, मैं खुश नहीं हो रहा, बल्कि रो रहा हूँ, क्योंकि मैं फिलहाल मजबूर हूँ। एक खौफनाक रूह मुझे इस कैद खाने से निकलने नहीं दे रही ओवर। इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा। और तुम भी इसी मंदिर में हो ओवर। जोले ने चौंकते हुए कहा। मंदिर में भी हूँ और तुम्हारे दिल में भी। मंदिर को तोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हारे दिल को नहीं, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, पर दिल ना किसी का तोड़ो। क्या तुम भी कैद खाने से बाहर नहीं जा सकती ओवर। इमरान ने शायराना अंदाज में बात करते हुए कहा। जी इमरान साहिब, हम यहाँ शकुंतला की रूह हम पर पहरा दे रही है और इसे धमकी दी है कि अगर हमने बाहर निकलने की कोशिश की तो वो हमारा खून पी जाएगी ओवर। नुमानी ने जल्दी से कहा, ताकि इमरान जोले से शोखे में वक्त ज़ाया न करे। शकुंतला की रूह ने सिर्फ तुम्हें दहशत ज़दा करने के लिए खून पीने की बात की है प्यारे, वरना रूहें खून नहीं पिया करती। डरने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम दोनों महफूज हो। पहले कालिदास मुझे ज़िबा करेगा, इसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा ओवर। इमरान ने हंसते हुए कहा। क्या क्या वो तुम्हें ज़िबा करेगा ओवर। जोले ने घबराए हुए लहजे में कहा। हाँ, कालिदास ने मेरे खून से गुस्सा करने की कसम खा रखी है। वो मुझे हनुमान देवता के चरणों में ज़िबा करेगा और फिर मेरे खून से गुस्सा करेगा। लक्ष्मण दास की रूह ने मुझे यही इत्तला दी है। पार्वती का भी यही कहना है ओवर। इमरान ने कहा। पार्वती, ये लड़की कौन है ओवर। नुमानी ने हैरान होते हुए पूछा। सुले भी पार्वती के नाम पर चौंक पड़ी थी। मेरी नई महबूबा, लेकिन शादी करने पर वो तैयार नहीं ओवर। इमरान ने कहा। अच्छा, तो यहाँ भी कोई लड़की आप पर मर मिटी है ओवर। नुमानी ने मुस्कुराते कहा। वो अब नहीं, बल्कि 300 बरस पहले मर मिटी थी। अब तो वो महज एक बदरू है। चाहो तो मैं इसे अपने पास भेज दूं, हो सकता है कि तुमसे शादी पर तैयार हो जाए। मुझे तो इसने साफ इनकार कर दिया है जोलिया के डर से ओवर। इमरान ने कहा। इमरान, क्यों बकवास कर रहे हो, हमें बताओ यहाँ से कैसे निकले। मेरा तो खौफ से होश को खून हो रहा है। जोलिया ने यकदम कराते हुए कहा। नो प्रॉब्लम, तुम्हारा खून खुश्क हो जाए तो कालिदास की तरह तुम नुमानी के खून में डुबकी लगा लेना। वैसे मुझे उम्मीद है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। दिन हो चुका है, शाम तक मुमकिन है जहाँ हम से निकल जाएं। तुम ख्वामख्वाह कोई जद्दोजहद मत करो ओवर। इमरान ने कहा। तो क्या हम शाम तक भूखे प्यासे बैठे रहें ओवर। जोलिया ने कुचले लहजे में कहा। नहीं, कोई बदरू आए तो इसे भून कर खा लेना और इसके खून से प्यास बुझा लेना ओवर। इमरान ने शायद भरे लहजे में कहा।
इमरान साहिब, क्या आपने कुछ खाया है? ओवर नुमानी ने पूछा। क्यों नहीं, एक ढांचे के सीरी पाए खाए हैं। पारूती ने अपने खून का प्याला भरकर मुझे पिलाया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने गाते हुए कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो नुमानी ने मुस्कुराते वॉइस ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। लेकिन इसी लम्हे कमरे में गुप अंधेरा फैल गया और खौफनाक चीख को पुकार सुनाई देने लगी। चलो एकदम सहम कर अपनी जगह सिमट गई। नुमानी भी घबरा कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर न आ रहा था। छत के सुराख से आने वाली रोशनी इस तरह गायब हो गई थी जैसे इस सुराख को बंद कर दिया गया हो। खौफनाक आवाजें ऐसी ही थी जैसे बहुत सी औरतें और मर्द बैक वक्त आपस में किसी मसले पर तकरार कर रहे हो। नुमानी, क्या तुम सुन रहे हो? जोले ने बेमुश्किल मुंह से आवाज निकालते हुए कहा। खौफ से उसका हलक खुश्क हो रहा था। हाँ मिस जोले, हमारे आसपास बहुत सी बदरूहें बोल रही। आप हौसला रखें, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपके पास मशीन पिस्टल है तो निकाले। मेरा मशीन पिस्टल तो बाग में ही गिर गया था, नुमानी खौफजदा लहजे में कहा। तो जोले ने कांपते हुए हाथों से अपना पर्स खोला और इसमें से मशीन पिस्टल निकाल लिया। ठीक इसी लम्हे खौफनाक आवाजें बंद हो गई और कमरे में दोबारा रोशनी फैल गई। लेकिन ये देखकर उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा कि दरवाजे के पास मिट्टी का गोल परातनुमा बर्तन रखा था। इसके साथ ही मिट्टी का बना हुआ एक कोजा नजर आ रहा था। मिट्टी के थाल में पके हुए चावल थे जिनसे भाप उठ रही थी। लगता था अभी अभी पकाकर थाल में डाले गए हों। कोजे पर नमी जाहिर करती थी कि इसमें पानी है, गोया अंधेरे में इनके लिए खाना फराहम किया गया था। लीजिए, शायद कालिदास का हम पर तरस आ गया है। खाना बिल्कुल ताज़ा लग रहा है। नुमाइंद तवील सांस लेते हुए जोले से कहा। मगर ये खाना यहाँ कौन रख गया? दरवाजा तो बंद था। सोने ने हैरत भरे लहजे में कहा। ज़ाहिर है कोई बदरू आई होगी और रूहें दरवाजे से भी गुजर सकती हैं। नुमानी ने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। ठहरो ठहरो, हो सकता है कि कोई और ही चक्कर। जोले ने एकदम घबराई आवाज में कहा। खाने में क्या चक्कर हो सकता है मिस जोले? हमें जहाँ कैद किया गया और कैदी को जेल में भी खाना दिया जाता है, नुमानी ने मुस्कुराते हुए कहा और दोबारा आगे बढ़ा। उसने फर्श से थाल और कोजा उठाया और लाकर जोले के आगे रखा। फिर खुद भी वो जोले के सामने बैठ गया। वो मुझे प्यास लगी है, पहले पानी पीऊंगी, मेरा हाल खुश्क हो रहा है, जोले ने आहिस्ता से कहा और कोजा उठा लिया। नुमानी ने थाल में से हाथ से चावल उठाए और इधर जोले ने कोजे से मुंह लगाकर पानी का घूंट लिया, लेकिन दूसरे लम्हे इसे अबकाई आई और इससे मुंह में भरा घूंट फर्श पर थूक दिया। नुमानी ऐसे जोले की तरफ देखा तो इसके होंठ सुर्ख थे जैसे खून में तर हो। फिर इसने फर्श पर नजर डालते जोले का अगला हुआ पानी गहरा सुर्ख था। ये तो खून है नुमानी, जोले ने चीख कर कहा और मिट्टी का कोजा दूर फेंक दिया। नुमानी को हैरत का झटका लगा। कोजा टूट गया था, फर्श पर खून फैला हुआ था। इस लम्हे नुमानी को अपने हाथ में सरसरार सी महसूस हुई जिसमें चावल थे। इसे तेज अपने हाथ पर नजर डाली तो इसने बौखला कर हाथ झटक दिया, क्योंकि वो चावल साइज के सफेद सफेद कीड़े थे जो अब फर्श पर हरकत कर रहे थे। फिर इसने थाल में नजर डाली तो वो भी कीड़ों से भरा हुआ था। कीड़े देखकर जोले के हलक से दहशत ज़दा सी चीख निकली और वो तेजी से पीछे सरकती हुई दीवार से जा लगी। नुमानी भी खौफजदा था। वो उठा और जोले के करीब जा खड़ा था। थाल में भरे कीड़े कुलबुला रहे थे और फर्श पर बिखरे हुए कीड़े कमरे के इस हिस्से की तरफ रेंग रहे थे जहां खून फैला हुआ था। कुछ कीड़े जोले के अगले हुए खून की तरफ हरकत कर रहे थे। बिलाशुबा ये मंजर इसके लिए नहायत दिल दहला देने वाला था। वो दोनों खौफ से लरजते हुए फटी फटी आंखों से कीड़ों की तरफ देख रहे थे जिनके रेंगने से सनसनाहट जैसी आवाजें सुनाई देने लगी थी। जल्दी कीड़े फर्श पर फैले खून के पास पहुंच गए और खून में दाखिल हो गए। नुमाइंद ने थाल की तरफ देखा तो इससे भी कीड़े निकलकर फर्श पर गिर रहे थे और खून को तरफ देख रहे थे। दफतन इन्हें महसूस हुआ कि खून में हरकत करने वालों कीड़ों की जिसामत बढ़ गई है। शायद वो खून पीकर बड़े होते जा रहे थे। चंद मिनट बाद अंदर अंदर फर्श से खून गायब हो गया और अब वहां कैंचर जैसी लंबी और मोटी सुर्ख कीड़े रेंग रहे थे। इनकी जिसामत बतदरीज बढ़ रही थी। देखते ही देखते वो कीड़े छोटे छोटे 8-10 इंच लंबे सांपों में बदल गए और खौफ की शिद्दत से जोलिया का सांस रुकने लगा। नुमाइंद भी दहशत ज़दा निगाहों से इन सांपों को देख रहा था। फिर जोलिया एकदम चीखने लगी क्योंकि वो सांप इसकी तरफ तेजी से रेंगने लगे और इसके मुंह से फनकारें निकल रही थी। तकरीबन 20-25 सांप थे और इनसे बचने के लिए इस कमरे में कोई महफूज जगह न थी। नुमाइंद ने खौफ से कांपते एकदम जोला के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल छीना और सांपों की तरफ फायर कर दिया। दूसरे लम्हे कमरे में गोले की खौफनाक थरथराहट गूंजी और इसके साथ ही यकदम तारीकी फैलती चली गई। चिल्ला चीखते चीखते बेहवास होकर फर्श पर लड़क गई और नुमानी भी लड़खड़ा कर फर्श पर गिरता चला गया। ड्राइंग रूम में सफदर, सदीकी और तनवीर बैठे वॉइस ट्रांसमीटर से उभरने वाले नासिर अली की आवाज़ सुन रहे थे। वो इन्हें इमरान की कॉल के बारे में बता रहा था और इसने लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर पर अटेंड की थी। इसका मतलब है कि बटनी पंडित कालिदास के मंदिर में कैद है। ओवर नासिर अली के खामोश होने पर सफदर ने तवील सांस लेते हुए कहा, जी हाँ, हो सकता है कि वो जल्दी आपसे ट्रांसमीटर पर राब्ता करें। इन्होंने आप लोगों को हिदायत की है कि आप परेशान ना हो और इनकी कॉल के मुंतजिर रहें। ओवर नासिर अली ने जवाब दिया। तुम्हें क्या पोजीशन है ओवर? सफदर ने पूछा। मैं इस इलाके से काफ़ी दूर निकल आया हूँ जहाँ रिसर्च ऑपरेशन हो रहा है। अब मैं उस शहर का रुख करूँगा। शहर पहुँचकर आपको मतला करूँगा। आप लोग आराम करें। ओवर दूसरी तरफ से नासिर अली ने कहा। ठीक है ओवर एंड आउट। सफदर ने कहा, ट्रांसमीटर ऑफ करके मेज़ पर रख दिया। ये इत्मीनान तो हुआ कि हमारे साथी जिंदा हैं, सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमें इमरान साहब की कॉल का इंतजार करना पड़ेगा। न जाने वो किस कॉल का वक्त कॉल करें। सफदर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ये कॉल कालिदास का बच्चा जबरदस्त साहिर है जिन्हें काफी साइंस सीक्रेट सर्विस और पुलिस की गिरफ्तार नहीं कर सकी। कालिदास ने इन्हें अपनी मामूली ताकतों से
गिरफ्तार में कर लिया। तनवीर ने गहरा सांस लेते हुए कहा, न जाने अब वो खबीस इमरान साहब से क्या सलूक करे, असल टारगेट तो इमरान ही है। सिद्दीकी ने तशवीश भरे लहजे में कहा, इमरान साहब को तो कालिदास की मावरिश तानी ताकतें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी, अलबत्ता मुझे मिस जोहर नमानी की फिक्र है। सिद्दीकी ने बेचैन से पहलू बदलते हुए कहा, चाहे तो मंगवा लो, काफी देर हो चुकी है। तनवीर ने जमाई लेते हुए कहा, खुद ही बनाना पड़ेगी, सख्त रहमत अली को तकलीफ देना मुनासिब नहीं है। सफदर ने कहा और सोफे से उठने लगा। ठहरो, मैं बना लेता हूँ, सिद्दीकी ने जल्दी से कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सफदर और तनवीर टीवी की तरफ मतवज्जा हो गए, जबकि ताज़ा न्यूज़ बुलेटिन देखा जा रहा था। पहली खबर तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के मुतालिक थी। इसमें बताया गया था कि मिसाइल प्रोजेक्ट को तबाह करने वाले प्रोजेक्ट के हेलीकॉप्टर पर कब्जा करके इसमें फरार हुए थे और हेलीकॉप्टर प्रेम नगर को जाने वाली सड़क की दूसरी जानिब तकरीबन 2 किलोमीटर दूर दरख्तों में से टकराकर तबाह हो गया था। हेलीकॉप्टर के मलबे से मजरूमों की लाशें या टुकड़े नहीं मिले, इसलिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ख्याल यह है कि मुजरिम हेलीकॉप्टर तबाह होने से पहले हेलीकॉप्टर से कूद गए थे और वो इसी इलाके में भी रूपोश हुए थे। इसके बाद दूसरी खबर में काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस के हवाले से बताया गया था कि फौजी छावनी तबाह करने वाले तीनों पाकिस्तानी एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें गिरफ्तारी के बाद एक खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और कल शाम इन्हें मौत की सजा दी जाएगी। इस खबर से सफदर और तनवीर भी परेशान हो गए थे। इतने में सिद्दीकी चाय बनाकर ले आया और फिर चाय पीने के दौरान वो इमरान जोलिया और नुमानी के बारे में बातें करने लगा। तकरीबन 1 घंटा बाद मेज पर रखे ट्रांसमीटर से सिग्नल की आवाज उभरी तो सफदर ने फौरन ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो सफदर, इमरान कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज सुनाई दी। यस इमरान साहब, सफदर अटेंडिंग जी ओवर। सफदर ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, नासिर अली ने तुम्हें कॉल की थी ओवर। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, जी हाँ आप सुनाए, आप लोग खैरियत से ओवर। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा, फिलहाल तो खैरियत ही है, अलबत्ता कल शाम मुझे हनुमान देवता की भेंट चढ़ाया जाएगा, इसके बाद पंडित कालिदास मेरे खून से गुस्सा करेगा। अगर तुम लोग भी गुस्सा करना चाहो तो आ जाना ओवर। इमरान ने कहा, ओह क्या आप ऐसा करना देंगे ओवर। सफदर ने तशवीश भरे लहजे में कहा, क्यों नहीं, मेरे पास क्या इख्तियार है इसे रोकने का। अब बता, तुम कोशिश करो तो शायद मैं बच जाऊं ओवर। इमरान हंसते हुए कहा, आप हुक्म दें, हमें क्या करना है ओवर। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मंगल सिंह से राब्ता, फोन नंबर नोट करो मंगल सिंह का ओवर। इमरान ने कहा और फिर उसने मंगल सिंह का नंबर बताने के बाद चंद हदायत दी। सदर सिद्दीकी तनवीर पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। बिल्कुल समझ क्यों, आप बेफिक्र हैं ओवर। सफदर ने इस्पात में सर हिलाते हुए कहा, तनवीर और सिद्दीकी की रवानगी का नासिर अली इंतजाम कर देगा। सुबह इसे राब्ता करके इसे हदायत दे देना और हाँ, मंगल सिंह से बात करने के बाद मुझे मतला कर देना ओवर। इमरान ने कहा, वैसे मिस जोहर और नुमानी के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। सफदर ने कहा, इनके बारे में कालिदास के गुलाम रूह से पता चला है कि वो भी इसी मंदिर में किसी जगह कैद है। चूंकि कालिदास का असल टारगेट मैं हूं, उससे वो पहले मेरा पता साफ करेगा, इसके बाद इन दोनों को खत्म करेगा। हो सकता है कि जनरल प्रॉन की ख्वाहिश पर कालिदास जोहर और नुमानी को काफी सीक्रेट सर्विस के हवाले करने का इरादा रखता हो। बहरहाल अभी नुमानी और जोहर शायद बेहोश हैं, क्योंकि वॉइस ट्रांसमीटर पर इनसे राब्ता कायम नहीं हो रहा ओवर। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा, कहीं ऐसा ना हो कि वो बदरुओं के दहशत से मर जाए ओवर। तनवीर ने जल्दी से कहा, नहीं जोला डरती जरूर है, लेकिन इतना नहीं जितना मैं जोले से डरता हूँ ओवर। इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा, इमरान साहिब वो औरत है, शैतानी कुव्वतों ने आपको नहीं बख्शा तो मिस जोले को कैसे छोड़ेंगी ओवर। सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, ये तो साबित हो चुका है कि कालिदास इस मावरे जराए से मुझे सिर्फ परेशान कर सकता है, लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर इसे जोले और सिद्दीकी को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं इसे कत्ल करने से पहले इस तरह इसकी खाल उतारूंगा कि जैसे कसाब बकरे के जिस्म से खाल अलग करते हैं ओवर एंड ऑल। इमरान ने इंतहाई साद लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो सफदर ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मेरा ख्याल है कि अब तुम दोनों कुछ आराम करो, सुबह तुम्हें तवील सफर करना होगा। सफदर ने सिद्दीकी और तनवीर से मुखातिब होकर कहा, मंगल सिंह से बात कर लो। तनवीर ने इसे याद दिलाते हुए कहा तो सफदर ने फोन का ट्रांसमीटर उठाया और इमरान की तरफ बताए हुए नंबर प्रेस करने लगा। हेलो मारवाड़ी क्लब। चल हमें बाद एक नसवानी आवाज सुनाई दी, मंगल सिंह से बात कराओ, मैं जंगल सिंह का दोस्त बोल रहा हूँ। सफदर ने पावकार लहजे में कहा। बेहतर 1 मिनट होल्ड करें। दूसरी तरफ से मुअद्दबा लहजे में कहा गया, हेलो मंगल सिंह बोल रहा हूँ। चल हम बाद दूसरी तरफ से मंगल सिंह की आवाज सुनाई दी, मैं जंगल सिंह का साथी बोल रहा हूँ। जंगल सिंह ने एक अहम पैगाम दिया, अपना फोन सेव कर लो। सफदर ने तहमकाना लहजे में कहा, ओ बेहतर 1 मिनट। दूसरी तरफ से मंगल सिंह ने चौंकते हुए लहजे में कहा, इमरान साहब हमारे 2 साथी इस वक्त पंडित कालिदास के मंदिर में कैद हैं। सुनो बाद सफदर ने मुतमईन लहजे में कहा, ओ वहाँ कब गए थे जनाब। मंगल सिंह ने हैरत भरे लहजे में कहा, शायद तुमने टीवी न्यूज़ बुलेटिन नहीं सुना। सफदर ने कहा और फिर मुख्तसरन उसने इमरान और अपने 2 साथियों के बारे में बता दिया और आखिर में उसने इमरान के दायरे से मंगल सिंह को आगाह कर दिया था। मैं समझ गया जनाब, इस वक्त तो शहर के हालात खराब हैं, कर्फ्यू का समा है और हर तरफ पुलिस और एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन के सिलसिले में नाके लगा रखे हैं, इसलिए मतलूबा आदमी को आपके ठिकाने पर पहुंचाना मुमकिन तो नहीं, अलबत्ता मैं इसे गिरफ्त में अभी ले लेता हूँ, फिर सुबह जैसे ही मौका मिला आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। मंगल सिंह ने मुअद्दबा लहजे में कहा, और क्या वो तुम्हारे क्लब में मौजूद है। सफदर ने चौंकते हुए कहा, जी हाँ, इसकी रवानगी में अभी चंद मिनट बाद किए हैं, अमूमन वो 12 बजे अपने घर चला जाता है। मंगल सिंह ने कहा, ठीक है, इसे काबू करने के बाद मुझे इस नंबर पर इतला दे देना। ओके सफदर ने कहा और रिसीवर कैडेट पर रख दिया। अच्छा वक्त तुमने फोन कर लिया, वरना कैप्टन प्रेम के घर जाना पड़ता। मंगल सिंह को सिद्दीकी ने कहा, हाँ गालिबा वो मंगल सिंह के क्लब में 12 बजे तक खेलता है। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद फोन की
की घंटी बज उठी तो सफदर ने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ हस्बे तवक्का मंगल सिंह की था। हेलो सफदर बोल रहा हूँ, सफदर ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। मंगल सिंह बोल रहा हूँ जनाब, कैप्टन प्रेम इस वक्त मेरे कमरे में बेहोश पड़ा है। दूसरी तरफ से मंगल सिंह ने कहा, गुड, कोई तो शायद तो पेश नहीं आई। क्लब में मौजूद दूसरे लोगों को तो इल्म नहीं हुआ? सफदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं जनाब, वो काउंटर पर आखिरी पैक पी रहा था, मैंने वेटर के जरिए इसे अपने कमरे में बुलाया और बेहोश कर दिया। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सुबह से पहले होश में नहीं आ सकेगा। इसकी गाड़ी पार्किंग में मौजूद है, आप इसके मेकअप में होंगे, इससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसी की गाड़ी में एयरपोर्ट जाएं ताकि किसी को शुबा न हो सके। मंगल सिंह ने तफसील से बात करते हुए कहा, ठीक है, मैं खुद ही सुबह तुम्हारे क्लब आ जाऊंगा, फिर वहाँ कैप्टन प्रेम का मेकअप करके इसकी गाड़ी में एयरपोर्ट जाऊंगा। सफदर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, बेहतर ये भी ठीक रहेगा क्योंकि मुलजिमों को गिरफ्तार करने की खबर आ चुकी है तो सर्फ ऑपरेशन में भी सुस्ती आ जाएगी और सुबह हालात नॉर्मल होंगे, फिर भी आप एहतियात कीजिएगा। मंगल सिंह ने कहा, सुनो, मैं सूरज निकलने से पहले तुम्हारे पास पहुंचना चाहता हूँ, बेहतर होगा कि तुम अपनी गाड़ी भिजवा देना। हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, इनमें से एक में तो मेरे साथी मंदिर की तरफ जाएंगे और दूसरी गाड़ी मुश्तबा हो चुकी है, इसमें तुम्हारे पास आना खतरनाक साबित हो सकता है। सफदर ने जल्दी से कहा, बहुत बेहतर, मैं 6:30 बजे अपना आदमी भेज दूंगा। और कोई हुक्म? मंगल सिंह ने कहा तो सफदर ने थैंक यू कहकर रिसीवर का क्रेडिट पर रख दिया और फिर तनवीर और सिद्दीकी को हदायत देने लगा। क्या तुम आराम नहीं करोगे? तनवीर ने सोफे से उठते हुए कहा, मैं यही सोफे पर आराम कर लूंगा, हो सकता है कि किसी वक्त इमरान साहब की फिर कॉल आ जाए। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो तनवीर और सिद्दीकी बेडरूम की तरफ बढ़ गए। सफदर उठा और बिल्कुल बाहर निकल आया। बरामदे के बाहर चौकीदार रहमत अली चारपाई पर बैठा था। सफदर के कदमों की आहट सुनकर उसने सफदर की तरफ देखा और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। जी फरमाइए जनाब, रहमत अली ने करीब आकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुम सुबह मुझे 5:30 बजे जगा देना, मैं ड्राइंग रूम में हूँ। सफदर ने नरम लहजे में कहा। बहुत बेहतर जनाब, क्या आप नाश्ता भी इसी वक्त करेंगे? रहमत अली ने चुंगते हुए पूछा। नहीं, सिर्फ चाय पीऊंगा, जरूरत महसूस हुई तो फिर बता दूंगा। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा और पलटकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर वो सोफे पर नीम दराज होकर इमरान जोले और नुमानी के बारे में सोचने लगा। फिर न जाने किस वक्त आंख लग गई, लेकिन सुबह 4 बजे ट्रांसमीटर की आवाज पर वो बेदार हो गया। वॉइस ट्रांसमीटर से सिग्नल की मखसूस आवाज आ रही थी। उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो सफदर साहिब, नासिर अली कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से नासिर अली की आवाज सुनाई दी। यस सफदर अटेंडिंग यू, क्या तुम शहर पहुंच गए हो? ओवर। सफदर ने चुकते हुए कहा, जी हाँ, अभी चंद मिनट पहले पहुंचा हूँ। क्या इमरान साहब ने आपको कॉल की थी? ओवर। नासिर अली ने पूछा। हाँ, उनकी हिदायत पर सुबह तनवीर और सिद्दीकी बाई रोड पंडित कालिदास के मंदिर की तरफ रवाना होंगे। चूंकि वो इलाके से अनजान है, इससे इमरान साहब ने कहा है कि तुम इनके हमरा जाओगे। ओवर। सफदर ने जवाब दिया। क्या बेहतर, क्या आप नहीं जाएंगे? ओवर। नासिर अली ने पूछा। मैं यहाँ से 6:30 बजे रवाना होऊंगा। ओवर। सफदर ने जवाब देते हुए कहा। ऑल राइट, मैं 8 बजे आ जाऊंगा इन्हें लेने के लिए। क्या वो इस वक्त तैयार होंगे? ओवर। नासिर अली ने पूछा। हाँ, मैं इन्हें तैयार रहने की हिदायत कर दूंगा। ओवर एंड ऑल। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा और वॉइस ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। चलो, और सिद्दीकी से बात करके इमरान मुतमईन हो गया था कि फिलहाल वो दोनों खैरियत से हैं। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन कोठरी में बाहर की रोशनी नहीं पहुंच रही थी और चिराग की मध्यम रोशनी फैली जा रही थी। अभी तक दोबारा कोई मावराई वाकया पेश नहीं आया था। इमरान को शदीद भूख लग रही थी, इसलिए वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और करीब पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि लक्ष्मण दास की आवाज सुनाई दी। क्या चाहते हो नाबकार? मैंने तुम्हें मना किया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? लक्ष्मण दास ने गजबनाक लहजे में कहा। और माफ करना लक्ष्मण जी, मैं भूल गया, दरअसल मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मुझे तो ये भी याद नहीं कि यहाँ किससे और कैसे आया था और ये घर मेरा है या तुम्हारा? इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा। यह हनुमान जी का मंदिर है, अपनी याददाश्त दुरुस्त करो। लक्ष्मण दास ने गैबी आवाज सुनाई दी। बेहतर, क्या नाश्ता मिल जाएगा? भूख के मारे पेट में गड़बड़ हो रही है। इमरान ने सादतमंदी से सर हिलाते हुए कहा। आराम से बैठ जाओ, तुम्हारे लिए थोड़ी देर में खाना आ जाएगा। लक्ष्मण दास ने सख्त लहजे में कहा। सच, खाने में क्या क्या होगा? इमरान ने खुशी से उछलते हुए कहा। तुम्हें क्या चाहिए, क्या गोश्त खाओगे? लक्ष्मण दास ने तंजिया लहजे में कहा। नहीं यार, सुबह सुबह मुझे गोश्त खाने से चक्कर आते हैं और टांगों में दर्द होने लगती है। मैं नाश्ते में अंडे, डबल रोटी, मक्खन और चाय पसंद करता हूँ। अंडे उबले हुए हों तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, सामने दीवार के पास खाना रखा हुआ है, खा लो। लक्ष्मण दास ने हंसकर कहा तो इमरान ने पलट कर देखा और हैरान रह गया। इसके अक्ल में दीवार के पास सिनकों की एक बहुत बड़ी सी ट्रे रखी थी। इसे मिट्टी का एक डोंगा नुमा बर्तन रखा था और साथ ही मिट्टी का प्याला था जिसमें चाय थी। चाय से उठती भाप से जाहिर होता था कि वो गर्म है। इमरान ट्रे के पास आकर बैठा और बेताबी से डोंगे का ढक्कन उठाया तो वो बौखला गया। डोंगे में स्याह रंग के 10-12 बिच्छू हरकत कर रहे थे। इमरान ने फौरन ढक्कन बंद किया और इसने गुस्से से दांत पीसते हुए चाय का प्याला उठाया तो गुस्से की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसमें चाय के रंगत का गाढ़ा मवाद था जिससे सख्त बदबू आ रही थी, शायद वो पीप थी। इमरान ने प्याला रखने की बजाय यकदम दरवाजे पर दे मारा, लेकिन दूसरा लम्हा तेज हैरत अंगेज साबित हुआ। प्याला दरवाजे के तक पहुंचने से पहले गायब हो गया था। और लक्ष्मण दास के बच्चे, ये क्या मजाक है? इमरान दरवाजे की तरफ देखते हुए गजबनाक लहजे में कहा, लेकिन लक्ष्मण दास का कोई जवाब न दिया। ठीक है, इसी लम्हे बाहर से फायरिंग की आवाज सुनाई तो इमरान उछल कर खड़ा हो गया। किसी ने
मशीन पिस्टल से फायर किया था और इमरान के अंदाजे के मुताबिक फायरिंग की आवाज़ मंदिर के किसी हिस्से से उभरी थी। इमरान को याद आया कि सिद्दीकी और ज्वाला के पास कर्नल राजेश के मातहतों की मशीन पिस्टल थी। शायद इन दोनों में से किसी ने फायर किया था। ये ख्याल आते ही उसने अपनी जेब में मौजूद मशीन पिस्टल निकाला और फिर वॉइस ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो नुमानी, इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने नुमानी को कॉल करते हुए कहा, लेकिन कई लम्हे गुजर गए और नुमानी की तरफ से कोई जवाब न मिला तो उसे फ्रीक्वेंसी तब्दील की और ज्वाला को कॉल करने लगा, मगर ज्वाले से भी राब्ता कायम न हुआ तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसी लम्हे कमरे में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। इमरान ने फर्श पर निगाह डाली। उसने एकदम घबरा कर कलाबाजी लगाई और इस जगह से कई फुट दूर जा गिरा। डोंगे का ढक्कन उतरा हुआ था और फर्श पर बड़े बड़े बिच्छू हरकत करते हुए इसकी तरफ बढ़े थे और डोंगा खाली नजर आ रहा था। यकीन वो बिच्छू डोंगों से ही निकले थे, लेकिन डोंगे में छोटे और आम जिसामत वाले बिच्छू नजर आए थे, जबकि फर्श पर रेंगने वाले बिच्छू इससे 4 गुना बड़ी जिसामत के थे और इसके डंक यूं उठे हुए थे जैसे वो इमरान को काटना चाहते हो। डरो मत, इमरान महाराज के कैदियों को यहाँ खाना दिया जाता है। तुमने इनसे नफरत की, इसलिए अब जो तुम्हें खाएंगे। दफतन लक्ष्मण दास के कहकादार आवाज सुनाई दी। डर कौन रहा है? मैं तो सर्दी से कांप रहा हूँ। इमरान लड़ते हुए खौफजदा लहजे में कहा। अब ये तुम्हारा खून चूसेंगे तो तुम्हारी सर्दी दूर हो जाएगी। लक्ष्मण दास की रूह ने हंसते हुए कहा। मगर तुम क्या फायदा होगा? इमरान ने बौखला कर पूछा। तुम्हारी बक बक से निजात मिल जाएगी मुझे, लक्ष्मण दास ने कहा। तो इमरान ने महसूस ये आवाज दरवाजे की तरफ से आ रही है। लक्ष्मण दास, इन्हें रोको वरना मैं रोने लगूंगा। इमरान ने फर्श की तरफ देखते हुए मुंह बनाते हुए कहा। रोने धोने से अब बिच्छुओं का पेट नहीं भरेगा, ये बिच्छू 1 हफ्ते से भूखे हैं, लक्ष्मण दास ने कहा। तो इमरान ने बिच्छुओं की तरफ देखा। जब इसे तकरीबन 2 कदम के फासले पर पहुंच चुके थे, दूसरे ही लम्हे उसने मशीन पिस्टल का रुख इनकी तरफ करके फायर कर दिया। गोली की तरतराहट में चंद करबनाक आवाजें सुनाई दी और इमरान ने दूसरा फायर दरवाजे की तरफ कर दिया। दरवाजे में कई सुराख हो गए, लेकिन लक्ष्मण दास की चीख ना उभरी। तब इमरान ने मशीन पिस्टल का रुख फिर फर्श की तरफ कर दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बेइख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि फर्श पर एक भी बिच्छू नजर न आ रहा था। हत्ता के बिच्छुओं वाला डोंगा और ट्रे भी गायब थी। इमरान ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। करीब आकर उसने मशीन पिस्टल की नौक से दरवाजे पर ठोकर लगाई, लेकिन कोई रद्द अमल जाहिर ना हुआ। तब उसने दरवाजे के एक सुराख से आंख लगाकर बाहर देखने की कोशिश की तो बाहर तारीकी के सिवा कुछ नजर न आया। इमरान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा न खुला, शायद वो बाहर से बंद था। इमरान ने मशीन पिस्टल जेब में डाला और फिर पीछे हटकर उसने एकदम उछलते हुए दोनों पांव पूरी कुव्वत से दरवाजे पर मारे और दूसरे लम्हे दरवाजा बाहर जा गिरा और इसके साथ ही इमरान भी बाहर फैली तारीकी में गिरता चला गया। लेकिन फिर इस पर बौखलाहट तारी हो गई। वो बाहर किसी चीज से टकराई या फर्श पर गिरे बगैर मुसलसल गिरता चला जा रहा था। शायद कमरे से बाहर कोई गहरी खाई थी या कुआं जिसमें इसका जिस्म पैरों के बल सीधा गिरता जा रहा था। इसे तेजी से दोनों हाथ फैलाकर दाएं बाएं चिल्लाए, लेकिन कहीं कुछ हाथ ना लगा। इसे यूं लगा जैसे वो तारीख खला में गहराई की तरफ गिर रहा हो। ये सिचुएशन इमरान के लिए इंतहाई हैरत अंगेज और खौफनाक थी। इसने अपने हवास बहाल रखने की कोशिश की और सोचने लगा कि वो कब और कहाँ जा गिरेगा। यकीनों की मावरे कुव्वत इसे मुसलसल गहराई की तरफ खींच रही थी। तकरीबन 2 मिनट गुजर गए। इमरान के असाब शल होते जा रहे थे। फिर अचानक ही उसके पाँव के सख्त चीज से टकराए और वो मुंह के बल गिर गया। इसके साथ ही उसका जिस्म हर किस्म के एहसास से आरी हो गया था। वो बेहवासी या बेहोशी की कैफियत में कितनी देर मुब्तला रहा और इसको एहसास इसे होश में आने पर ही हुआ था, जब इसने खुद को किसी ठंडे और पुख्ता फर्श पर महसूस करके अपनी किराए पर बंदी घड़ी पर नजर डाली तो घड़ी के अंधेरे में चमकती सुइयां सह पहर के 4 बजे का ऐलान कर रही थी। इसका मतलब था कि वो 8 घंटे बेहोश रहा था। इसके चारों तरफ तारीकी और सन्नाटा था। सलमों तक इमरान सोचता रहा कि वो कहाँ है। फिर इसने दाएं बाएं फर्श पर हाथ फैलाए और उठ बैठा। जिसका दिन का वक्त होने जाने के बावजूद वहां फैली तारीकी का मतलब था कि वो किसी बंद जगह पर है जहाँ बाहर की रोशनी नहीं पहुंच रही थी। इसने जेब में हाथ डालकर गैस लाइटर निकाला और जलाया। रोशनी फैली तो इसने आसपास का जायजा लिया और इसकी अकल कब्त होकर रह गई। इमरान का दिल चाह के वो जोर जोर से कहके लगाए, क्योंकि यही वो कमरा था जहां से इसने फरार होने के लिए दरवाजा तोड़ा था। लेकिन अब दरवाजा भी जूं का तो अपनी जगह मौजूद था और इसमें मौजूद गोलियों के सुराग भी नजर आ रहे थे। यकीनन पंडित कालिदास की गुलाम कुव्वतों ने इसके फरार की कोशिशें नाकाम बना दी थी। इमरान लाइटर बुझाए और सोचने लगा कि क्या किया जाए। फिर अचानक इसे अपने साथियों का ख्याल आया और उसने तेजी से लिबास में पोशीदा लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाल लिया। हेलो सफदर, इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने सफदर को कॉल करते हुए कहा। यस इमरान साहिब, सदर अटेंडिंग जो ओवर। चंद लम्हों बाद सफदर की आवाज सुनाई दी। क्या पोजीशन है? तफसील से बताओ ओवर। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मैं एयरपोर्ट पर कैप्टन प्रेम के हेलीकॉप्टर में मौजूद तनवीर और सिद्दीकी नासिर अली के हमरा कार में सुबह 9 बजे रवाना हो गए थे। शायद अब तक वो मंजिल पर पहुंच चुके हों ओवर। सफदर ने जवाब दिया। किसी को तुम पर शबा तो नहीं हुआ? शहर की क्या सूरत हाल है ओवर? इमरान ने पूछा। नॉर्मल, आपकी गिरफ्तारी का ऐलान होने के बाद सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। अभी भी काफिरस्तानी सीक्रेट सर्विस के चीफ के कैप्टन प्रेम के मोबाइल फोन पर कॉल आई थी। इसने हिदायत की है कि मैं सफर के लिए तैयार रहूं।
वो 4 साथियों के हमरा एयरपोर्ट पर आ रहा है और इन पंडित कालिदास के मंदिर जाना है। ओवर दूसरी तरफ से सफदर ने मुसलसल बोलते हुए कहा, ठीक है सर, होशियार से अपना काम करना। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा, ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर वो ट्रांसमीटर पर नासिर अली की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा, लेकिन इसी लम्हे उसका वॉइस ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ और उसने वॉइस ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो इमरान साहब, सिद्दीकी कॉलिंग। ओवर ट्रांसमीटर सिद्दीकी की आवाज से दी। जैस इमरान अटेंडिंग जो। ओवर इमरान ने कहा, हम तीनों जंगल में दाखिल हो चुके हैं और मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवर सिद्दीकी ने कहा, गुड। असलह वगैरह की क्या पोजीशन है? ओवर इमरान ने सर हिलाते हुए पूछा, आपने नासिर अली को जिस असले के कहा था वो सब हमारे पास है। ओवर सिद्दीकी ने जवाब दिया। मंदिर का रास्ता कैसे मालूम किया? ओवर इमरान ने पूछा, जहाँ एक देहाती हमारी रहनुमाई कर रहा है, हमने इसे कुछ रकम दी है ताकि वो हमें मंदिर तक पहुंचा दे। ओवर सिद्दीकी ने कहा, ठीक है, यहाँ पहुंचने के बाद तो मंदिर के अकब में खुद को पोशीदा रखना और अपने गाइड से भी निजात हासिल कर लेना। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और मजीद चंद हिदायत देकर उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और नुमानी को कॉल करने लगा, लेकिन कई लम्हों तक कॉल करने के बावजूद नुमानी की तरफ से कोई जवाब मसूल न हुआ तो उसने जोलिया को कॉल करने की कोशिश की, मगर जवाब न मिलने पर उसने मायूस होकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद वॉइस ट्रांसमीटर पर सिग्नल मसूल हुआ तो उसने जल्दी से ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो इमरान साहब, सिद्दीकी कॉलिंग। ओवर। इन ट्रांसमीटर से सिद्दीकी की आवाज सुनाई दी। यस इमरान अटेंडिंग जी। ओवर इमरान ने जल्दी से कहा, हम मंदिर के अकब में पहुंच गए। ओवर सिद्दीकी ने इत्तला देते हुए कहा, इस जानिब की क्या पोजीशन? ओवर इमरान ने पूछा, इस तरफ एक सीधा सा दरवाजा है जो बंद नजर आ रहा है। इमारत से तकरीबन 15 कदम के फासले पर जंगल के दरख्त है और इन्हीं दरख्तों की आड़ में है। मंदिर के अकब में कोई जीरू मौजूद नहीं है, अलबत्ता मंदिर के सामने काफी कुछ ज्यादा खाली जगह है। मंदिर के फाटक के बाहर 10-12 पुजारी बैठे हैं। कुछ यात्रियों ने दरख्तों के पास तकिए लगाए हुए हैं, इनमें ज्यादातर बूढ़े लोग हैं। मैं इस जानिब का जायजा लेकर आया हूँ। ओवर सिद्दीकी ने मुसलसल बोलते हुए कहा, ठीक है, जैसे काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस का हेलीकॉप्टर लैंड करे, काफिरस्तानी सीक्रेट सर्विस के अफराद मंदिर में दाखिल हो, तुम लोग अकबी दरवाजे से मंदिर में दाखिल हो जाना। इस तरफ से मुमकिन ना हो तो फ्रंट की तरफ से अंदर आना होगा। जनरल प्रॉन ने अंदर आने के जाने के बाद अगर सफदर हेलीकॉप्टर मौजूद रहे तो वॉइस ट्रांसमीटर से इसे कॉल करके अंदर पहुंचने की हिदायत कर देना। तुम लोगों को मंदिर की पूजा पाठ वाले कमरे में पहुंचना है जहां हनुमान का बुत रखा होगा। सफदर से इस वक्त राब्ता कायम करना जब वो अकेला रह जाए। ओवर इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा, बहुत बेहतर कि आप अभी बदरुओं के नरके में हैं। ओवर सिद्दीकी ने कहा, हाँ, लेकिन शायद कुछ देर बाद मुझे ज़िबा करने के लिए पूजा पाठ वाले कमरे में मुंतकिल कर दिया जाए। ओवर एंड ऑल। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और वॉइस ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर वह दोबारा नुमाइंद से वॉइस ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी लम्हे छत से कोई स्याह रंग का चिड़ा सा इमरान के सर पर आ गया और इस पर क़नूत की तारी होती चली गई। हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा 5 अफराद सवार थे। पायलट के साथ वाली सीट पर काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस का सरबराह जनरल प्रॉन बैठा था, जबकि इसके 4 मातहत अगली सीटों पर बैठे थे। इन चारों में कर्नल राजेश भी शामिल था, जो 2 नशिस्तों पर तनहा तकरीबन नीम दराज था। इनका दायां बाजू हाथ से लेकर कंधे तक पट्टियों में लिपटा हुआ था। गले में एक पट्टी हायल थी जिसमें उसने बाजू रखा हुआ था। इसके चेहरे पर जिस्मानी कमजोरी जाहिर हो रही थी। अगरचे जनरल प्रॉन इसे साथ नहीं लाना चाहता था, लेकिन कर्नल राजेश के इसरार पर वो मान गया था। कर्नल राजेश अपनी आंखों से इमरान और इसके साथियों का हशर देखना चाहता था, जिन्होंने ना सिर्फ उसकी आंखों के सामने काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस के 5 पैदी एजेंटों को कत्ल कर दिया था, बल्कि अपनी दानिश में इसे भी हला करके फरार हो गए थे। चीफ, क्या ये ज्यादा बेहतर ना होता कि पंडित कालिदास बाकी एजेंटों को हमारे हवाले कर देता? तो सफर अचानक कर्नल राजेश ने किसी ख्याल के तहत आगे बैठे जनरल प्रॉन को मुखातिब करते मुअद्दबाना लहजे में कहा, इससे क्या होता? हम शायद इमरान को इस तरह सजा न दे सकते जैसे पंडित कालिदास ने इसे मौत के घाट उतारने का सोच रखा है। जनरल प्रॉन ने सामने देखते हुए सख्त लहजे में कहा, चीफ, इमरान और इसके साथियों ने जिस तरह हमारे प्रोजेक्ट और छावनी को तबाह किया और जिस कदर आदमी मारे गए थे, इससे अवामी हुकूमत के खिलाफ काफी इस्तेदाल पैदा हो गया है। हम इमरान को शहर के किसी चौराहे पर सरेआम मौत की सजा देते तो इमरान को गुस्सा ठंडा होता। पंडित कालिदास इमरान को कत्ल करेगा तो हमारे बारे में अवाम का तासुब मनफी होंगे और सबूत के बगैर अवाम इमरान को मौत का यकीन नहीं करेंगे। कर्नल राजेश ने अंदेशा जाहिर करते हुए कहा, मैंने पंडित महाजरात से बात की थी, लेकिन वो नहीं माना। वो अपनी कसम पूरी करना चाहते हैं और चूंकि इमरान को इन्होंने नहीं पकड़ा, इसलिए हम इन्हें मजबूर नहीं कर सकते। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि इमरान और इसके साथी किसी न किसी तरीके से मारे जाएं, ताकि हुकूमत हमें होने वाले तबाही का जिम्मेदार करार देकर सजा न दे। जनरल प्रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, चीफ, आप एक मतलब फिर कालिदास का ये बावर कराने की कोशिश करें कि हुक्काम और अवाम के इत्मीनान के लिए पाकची एजेंटों को सरेआम सजा देना ज़रूरी है। मीडिया के जरिए इनकी मौत का मंजर पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा तो हमारे दुश्मन ममालिक पर हमारी धाक बैठ जाएगी और आइंदा पाकिस्तान को जुर्रत तक न हो सकेगी कि हमारे मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करें या अपने एजेंटों को यहाँ भेजे। इसके अलावा पूरी दुनिया में पंडित कालिदास का भी चर्चा हो जाएगा। अकबी नशीस पर बैठे कैप्टन जोगिंदर ने जनरल प्रॉन की तरफ देखते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा, यस चीफ, कैप्टन जोगिंदर दुरुस्त बात कह रहे हैं। कैप्टन जोगिंदर
के साथ बैठे कैप्टन अनिल ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, जनरल प्रॉन ने हंसकर कहा और जेब से ट्रांसमीटर निकालकर इसके 2 बटन प्रेस कर दिए। हेलो महाराज, जनरल प्रॉन बोल रहा हूँ। ओवर। जनरल प्रॉन ट्रांसमीटर चेहरे के करीब करके कहा। हाँ जनरल प्रॉन, पंडित कालिदास बोल रहा हूँ, क्या तुम लोग आ रहे हो? ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से कालिदास की आवाज सुनाई दी। जी हाँ महाराज, हम रास्ते में हैं। क्या पाकिस्तानी एजेंटों को कत्ल की तैयारी मुकम्मल हो गई है? ओवर। जनरल प्रॉन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तैयारी क्या करनी है, वो बेहोश पड़े हैं, अभी इन्हें कोठरियों से निकालकर पूजा करने वाले कमरे में लाया जाएगा और फिर देवता को भेंट दे दी जाएगी। और कालिदास की हंसी हुई आवाज सुनाई दी। महाराज, ये तो अपने मुजरिमों के लिए बहुत आसान मौत है। ओवर। जनरल प्रॉन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो जनरल प्रॉन? ओवर। कालिदास से चुभते हुए लहजे में कहा। महाराज, मेरा मतलब है कि वो लोग इंतहाई अजियतनाक मौत के मुस्तहिक है। देखिए, पाकिस्तानी एजेंटों ने हमारे गरीब अवाम की कमाई से बनाया हुआ एक अजीम मिसाइल प्रोजेक्ट तबाह किया है, खरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है हमारे मुल्क को। इसके अलावा फौजी छावनी को भी बमों से उड़ाया है और मुल्क का दिफा वाले 600-700 बहादुर नौजवानों को मौत के घाट उतारा है। इन नौजवानों की बीवियां शोहरों से और बच्चे बाप के साय से महरूम हो गए हैं। माँ अपने बहादुर बेटों की मौत पर पागल हो रही हैं। वह हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करी और सबका मुतालबा है कि पाकिस्तानी एजेंटों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। कातलों को मरते देखकर अवाम का कलेजा ठंडा होगा। ओवर। जनरल प्रॉन ने बड़ी चापलूसी से बात करते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो जनरल प्रॉन। ओवर। दूसरी तरफ से पंडित कालिदास ने मुतासिर लहजे में कहा। इसलिए हुकूमत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी एजेंटों को हमारे हवाले कर दे ताकि इन्हें अवाम के सामने सजा दी जाए, वरना अंदेशा यह है कि देश में बगावत फैल जाएगी और बगावत हुई तो हमारा दुश्मन मौके से फायदा उठाकर हमारे मुल्क पर हमला कर देगा, जिसके नतीजे में हमें 1965 की तरह न सिर्फ अजियत अमेज शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा, बल्कि जंग में हमारे लाखों सिपाही भी मारे जाएंगे और हमारी धरती पर हमारे धर्म के दुश्मनों का कब्जा हो जाएगा। ओवर। जनरल प्रॉन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ठीक है जनरल प्रॉन, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि अवाम को यकीन दिलाया जाए कि दुश्मन एजेंटों को कत्ल कर दिया गया है, तो मैंने देवता के चरणों में ज़िबा करने और इमरान के खून से कोसा करने के बाद इनकी लाशें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और वह पंडित कालिदास में हथनी लहजे में कहा। महाराज, आपने इमरान के खून से कोसा करने का अहद कर रखा है, आप इसे जरूर पूरा करें, लेकिन इसके बाकी 2 साथियों को हमारे हवाले कर दें तो ये आपका एहसान होगा पूरी कौम पर। ओवर। जनरल प्रॉन ने पंतेरा बदलते हुए लजाहत भरे लहजे में कहा। तुमने भी तो इन्हें कत्ल करना है, इमरान के बाद मैं इन्हें खत्म कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ओवर। पंडित कालिदास ने कहा। महाराज, बेशक इन्हें मौत की सजा दे दी जाए, लेकिन इमरान के 3 साथी मफरूर हैं और इन्होंने मिसाइल प्रोजेक्ट तबाह किया है। आपके पास जो इमरान के 2 साथी हैं, इनमें जोलिया नामी लड़की पाकिस्तान सिविल्स के डिप्टी चीफ है। हम इनसे मफरूर अफराद के बारे में पूछगिछ करेंगे और इन्हें गिरफ्तार करने के बाद 5 को एक साथ सजा देंगे। ओवर। जनरल प्रॉन ने फजाहत से पंडित कालिदास को समझाते हुए कहा। खैर, अगर ऐसी बात है तो बेशक इन दोनों को ले जाना, अलबत्ता इन्हें सजा जरूर देना। ओवर एंड ऑल, पंडित कालिदास ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो जनरल प्रॉन ने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रखा। सुन लिया कर्नल राजेश, महाराज जोलिया और इसके साथी के हवाले करने पर रजामंद हो गया है। जनरल प्रॉन ने पीछे देखे बगैर कहा। यह सिर्फ जोलिया को मैं खुद सजा दूंगा। कर्नल राजेश ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। क्यों, क्या तुमने भी कसम खा रखी है महाराज की तरह? जनरल प्रॉन ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। कसम नहीं सर, लेकिन मैं इस स्विस नजाज से इंतकाम लेने के लिए बेचैन हूँ। इमरान ने मुझ पर फायरिंग की थी। कर्नल राजेश ने कहा। फायरिंग इमरान ने की थी और इंतकाम तुम जोलिया से लेना चाहते हो? मैं समझा नहीं, जनरल प्रॉन ने चुनते हुए कहा। चीफ, मैं जोलिया पर फायर करने लगा था और इमरान जोलिया को बचाने के लिए मुझ पर फायरिंग कर दी थी। अगर जोलिया मेरे हाथों मारी जाती तो फिर इमरान वहां से फरार न हो सकता था। कर्नल राजेश ने वजाहत करते हुए कहा तो जनरल प्रॉन ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया हुआ। कैप्टन प्रेम, अभी कितना फासला बाकी है? कर्नल राजेश ने पायलट को मुखातिब करते हुए पूछा। चंद मिनट में हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, पायलट कैप्टन प्रेम ने मुतबाना लहजे में कहा। हमें सूरज डूबने से पहले मंदिर पहुंचना है कैप्टन, क्योंकि सूरज गुरूब होने के फौरन बाद इस माह का नया चांद तुलू होता ही पंडित कालिदास ने इमरान को हनुमान जी की भेंट चढ़ाना है। जनरल प्रॉन ने पायलट से मुखातिब होकर कहा। आप फिक्र मत करें सर, हम सूरज डूबने से 15 मिनट पहले वहां पहुंच जाएंगे। कैप्टन प्रेम ने यकीनी लहजे में कहा तो जनरल प्रॉन मुतमईन हो गया। फिर बाकी 15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर मंदिर वाले जंगल पर पहुंच गया। जनरल प्रॉन नीचे का मंजर देखने लगा। हेलीकॉप्टर जंगल के दरख्तों से तकरीबन 50 फुट के तकरीबन पर परवाज बुलंदी पर कर रहा था। कैप्टन प्रेम हेलीकॉप्टर की बुलंदी बतरीज कम करने लगा। सूरज मगरिब में झलकता चला जा रहा था। चंद लम्हों बाद जनरल के वस्त में एक खंडर नुमा इमारत दिखाई दी जो 1000 साल कदीम मंदिर था। तो कैप्टन प्रेम ने मंदिर के गिर्द चक्कर लगाया और फिर मंदिर के सामने खुले मैदान के ऊपर पहुंच गया। सर, हम पहुंच गए हैं, मैं लैंडिंग कर रहा हूँ, कैप्टन प्रेम ने जनरल प्रॉन की तरफ देखे बगैर कहा और हेलीकॉप्टर को मैदान में उतारने लगा। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गया तो कैप्टन प्रेम ने इंजन बंद कर दिए। हेलीकॉप्टर के परों की गर्दिश से उड़ने वाले गर्दोगवार से घबराकर मंदिर के बाहर बैठे पुजारी इधर उधर भागने लगे, लेकिन जो ही हेलीकॉप्टर के परों की गर्दिश बंद हुई तो कैप्टन प्रेम ने एक बटन प्रेस किया और दूसरी तरफ का दरवाजा खुल गया। इसी दौरान गर्दोगवार तकरीबन खत्म हो चुका था। सबसे पहले जनरल प्रॉन हेलीकॉप्टर से बाहर आया और फिर दूसरे अफराद उतरे।
जोगिंदर और अनिल ने कर्नल राजेश को सहारा देकर हेलीकॉप्टर से उतारा। गर्द गुबार से डरकर भागने वाला पुजारी दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। इस समय मंदिर के दरवाजे से एक पुजारी बाहर आया। उसने सिर्फ एक तहमत पहनकर गर्द पहन लपेट रखा था और गले में मोटे दानों की माला लटक रही थी। पेशानी पर तलक और 3 सफेद मतवासी लकीरें खींची हुई थी और पुजारी इन लोगों की तरफ बढ़ा। ये कौन है? जनरल प्राणी की तरफ देखते हुए अपने साथी से पूछा। चीफ, ये मंदिर का महापुजारी गोपी राम है। गालिबन आपके इस्तकबाल के महाराज ने इसे भेजा है, कैप्टन जोगिंदर ने जल्दी से कहा। महापुजारी गोपी राम ने तकरीबन आकर जनरल प्रॉन के हाथ बांधकर नमस्ते कहा तो जनरल प्रॉन ने भी जवाबन इसे प्रणाम कहा। आइए जनाब, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं, गोपी राम ने मौदवाना लहजे में कहा और मंदिर के दरवाजे की तरफ पलट गया। जनरल प्रॉन और इसके मातहत गोपी राम के पीछे चलते हुए मंदिर में दाखिल हो गए। पलट कैप्टन प्रेम के रूप में सफदर इन्हें देख रहा था। वो हेलीकॉप्टर में अपने सीट पर बैठा था। जनरल प्रॉन इनके मातहतों के अंदर जाने के बाद सफदर सोचने लगा कि तनवीर सद्दीकी और नासिर अली को कॉल करके तलब करे और फिर इसके हमरा मंदिर में दाखिल हो जाए। इस लम्हे इसके वॉइस ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ और उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो सफदर सद्दीकी, कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर सद्दीकी की आवाज सुनाई दी। यह सफदर अटेंडिंग यू, तुम लोग कहाँ हो? ओवर, सफदर ने बेचैन से लहजे में पूछा। मंदिर के अकब में। इमरान साहब की हिदायत है कि हम मंदिर के अकबी दरवाजे से पूजा पाठ वाले कमरे में पहुंचे और तुम फ्रंट की तरफ से अंदर आओ, लेकिन अकबी दरवाजा सख्ती से बंद है और इसे तोड़ने की कोशिश में अंदर मौजूद लोग चुकन्ने हो जाएंगे। इससे हमें तुम्हारे साथ अंदर जाना पड़ेगा। चूंकि तुम पायलट हो, इसलिए मंदिर के पुजारी हमें तुम्हारे राह देखकर शुबा ना करेंगे, ओवर सदीकी ने कहा। ऑल राइट, मैं हेलीकॉप्टर के अकब में दरख्तों के पीछे तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, ओवर एंड ऑल, सफदर ने कहा और वॉइस ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और हेलीकॉप्टर से उतरकर अकब की तरफ बढ़ गया। वो हेलीकॉप्टर के अकब में आकर कुछ फासले पर वाक़या घने दरख्तों की तरफ बढ़ा था और चंद पुजारी इसे देख रहे थे। वो पुजारी अब मंदिर के दरवाजे की दोनों जानिब सीढ़ियों पर वापस आ बैठे थे। सदर दरख्तों में दाखिल हुआ और चंद कदम चलकर रुक गया। तकरीबन 2 मिनट बाद इसे कदमों के आटे और खुश्क पत्तों के चढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी। वो जल्दी करीब आ गए। फिर नीम तारीकी में से तनवीर सदीकी और नासिर अली दिखाई दिए। सूरज की आखिरी किरणें मंदिर के सामने वाले हिस्से पर पड़ रही थी। इससे दरख्तों में तारीकी ज्यादा ना थी और नॉर्मल रफ्तार से बाहर निकलना। चंद दरवाजे पर चंद पुजारी मौजूद हैं, सफदर ने आहिस्ता से कहा। सूरज डूबने में 2-3 मिनट बाकी हैं, हमें देर हो गई तो हमारे साथी नहीं बच सकेंगे। तनवीर ने तेजी से कहा। नहीं, अब सिर्फ इमरान साहिब ही कालिदास का टारगेट है। मिस जोले और नुमानी को काफी सीक्रेट सर्विस वाले साथ ले जाएंगे ताकि इनसे हमारे बारे में पूछगिछ कर सके, सफदर ने वापस चलते हुए कहा। तो वो तीनों इसके पीछे कदम उठाने लगे। दरख्तों से निकलकर वो इत्मीनान से मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर के बाहर बैठे पुजारी इन्हें देख रहे थे। इनके चेहरे से हैरत मुतरशिश थी क्योंकि इन्होंने सफदर को तना दरख्तों की तरफ जाते देखा और अब इनके हमरा 3 अफराद और थे, लेकिन किसी पुजारी ने इनसे पूछगिछ या बात करने की जुर्रत न की और वो चालों खोए दरवाजे से मंदिर में दाखिल हो गए। नुमानी और जोलक को बैक वक्त होश आया तो आवाज बहाल होते ही इन्हें सिचुएशन का पता चल गया कि इसके साथ ही इन पर खौफतारी होता चला गया। ये एक बहुत बड़ा हालनुमा कमरा था जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर 4 सतून बने हुए थे। बाएं जानिब के 2 सतून एक दूसरे से तकरीबन 6 फुट के फासले पर थे। वो इन सतूनों के साथ बंधे हुए थे। इनके जिस्मों के गिर्द मजबूत रस्सियां लिपटी हुई थी जबकि इनके हाथ अकब में बंधे हुए थे। बाएं जानिब कमरे का मुनकश जो भी दरवाजा था, जो दरवाजे के सामने वाली दीवार के पास एक बहुत बड़ा पथरीला मुजस्मा रखा था जिसकी बुलंदी कम से कम 8 फुट और चौड़ाई 30 फुट थी। स्याह रंग का वो मुजस्मा हनुमान देवता का था। इसके खौफनाक चेहरे पर बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें और सुर्ख होंठों में से बाहर को लटकी हुई जुबान दिखाई दे रही थी। फुसफुस के दोनों पांव के दरमियान 2 फुट का फासला था। मुजस्मे के गले में ताज़ा जंगली फलों के हार लटक रहे थे और इसका चेहरा बंदर से मुशाबा था। इसके पैरों के दरमियान जंगली गुलाब के फूलों का ढेर रखा था जबकि बाएं दाएं पत्थर के गोल अगर दानों में संदल और लोहान सलग रहे थे जिसे खुशबू धुएं में लिपटी रही थी। जिसमें के दाएं बाएं दीवारों में बने ताकचों में सरसों के तेल के कई चिराग जल रहे थे और इनकी तेज रोशनी में हर चीज वाज़ा दिखाई दे रही थी। सूरज सिद्दीकी ने कदमों से 5-6 फुट के फासले पर बिछे दरी नुमा कालीन पर मुजस्मे के कदमों के करीब पत्थर के 1 मुरब्बा फुट लंबी 1 मुरब्बा फुट चौड़ी और 3 फुट बुलंद सिल रखी थी जिसकी बराई सतह पर खुश्क और जमा हुआ स्याह खून दिखाई दे रहा था। सिल की बराई सतह पर 2 नालियां बनी हुई थी जो सिल के किनारे से नीचे जा रही थी और इनके नीचे दोनों जानिब पत्थर से तराशे हुए 2 बड़े बड़े प्याले रखे थे। सिल के करीब ही इमरान फर्श पर दराज था। इसकी आंखें बंद थी, शायद वो बेहोश था। इसकी दूसरी जानिब 2 हट्टे कट्टे और बढ़ना तन पुजारी खड़े थे और जो उधेड़ उम्र थे। इन्होंने सिर्फ तहमत पहन रखे थे। बढ़ना सीनों पर सफेद रंग से तेज 3 मतवारी लकीरें खींची हुई थी। ऐसी ही लकीरें इनके पेशानियों पर भी नजर आ रही थी। इनके गर्दन में मोटे स्याह दानों की मालाएं थी। इनकी रंगत स्याह थी और शक्लें भी बेहद खौफनाक थी। इनकी आंखें डरावनी लग रही थी और इनके सर और भुवों के बाल गायब थे। पत्थर की सिल और मुजस्मे के दरमियान फर्श पर एक और खौफनाक शख्सियत दिखाई दी। वो मुजस्मे की तरफ रुख किए आलती पालती मारे बैठा एक बेहद उम्र रसीद शख्स था। ज़ईफुल अमर होने के बावजूद वो काफी सेहतमंद नजर आ रहा था। जिसके जिस्म पर जर्द रंग के चादर कमर तक लिपटी हुई थी। बाकी बदन
بدن برہنا تھا، اس کی بھویں اور پلکیں تک سفید تھی، سرگنجا اور چہرے سمیت پورے بدن پر چیچک کے پرانے سیاہ داغ نظر آ رہے تھے۔ اس کی پیشانی پر تلک کا موٹا سا نشان اور گلے میں موٹے دانوں کی مالائیں تھیں۔ آنکھیں چھوٹی اور گول تھیں لیکن ان میں خون جیسے سرخی تھی۔ اس کے سیاہ چہرے پر قباضت پھیلی ہوئی تھی۔ جو بوڑھا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مجسمے کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی لیکن ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ صدیقوں کے جولے اسے دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ مکروح شکل بوڑھا پنڈت کالی داس ہے۔ پتھر کے چبوترا نما سر پر جمع ہوا سیاہ خون اور اس کے قریب پڑے عمران کے بے ہوش جسم سے ظاہر ہو رہا تھا کہ پنڈت کالی داس عمران کو دیوتا کی بھینٹ چڑھانے کے لیے ذبح کرنے والا ہے، اور اسی خیال سے نعمانی اور جولیا خوفزدہ تھے۔ عمران نے انہیں بتایا تھا کہ پہلے اسے ذبح کر کے اس کے خون سے پنڈت کالی داس غسل کرے گا اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی باری آئے گی۔ جولیا کو اپنی نہیں عمران کی فکر نے اس طرح میں مبتلا کر رکھا تھا، لیکن وہ بے بس تھے۔ قید کے دوران نعمانی نے مشین پسٹل سے سانپ نما کیڑوں پر فائر کیا تھا اور اندھیرا ہوتے ہی ان دونوں پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہیں اب ہوش آیا تھا، اس سے وہ واش ٹرانسمیٹر پر عمران سے دوبارہ بات نہیں کر سکے تھے۔ ان کے ہاتھ اور گردن سے کمر تک جسم مضبوط رسیوں کی گرفت میں تھی جن سے آزادی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ خوفناک ماحول سے دہشت محسوس کرنے کے باوجود جولیا کے ذہن پر اس خیال سے ہتھوڑے برس رہے تھے کہ کیا عمران اس کی نگاہوں کے سامنے قتل ہو جائے گا؟ کیا وہ خوف و بوڑھا اس کے محبوب کے خون سے غسل کرنے کے ارادے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا وہ عمران کی موت کا منظر دیکھ کر زندہ رہ سکے گا؟ کاش وہ عمران کو بچانے کی کوشش کر سکتی، کاش وہ اپنی جان دے کر عمران کو بچا لیتی، جس کی چاہت میں اسے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر پاکیزہ کو اپنا وطن بنایا تھا، اور عمران کی سنگت میں ملک کی خاطر کئی مرتبہ جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ بے بسی کے عالم میں اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ آنسو آنکھوں کی قید سے آزاد ہوتے، جناب پنڈت کالی داس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے رخ بدل کر وہاں کھڑے دونوں پجاریوں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ گوپی رام، مجھے معلوم ہے کہ جنرل براؤن ہماری حدود میں پہنچ گیا ہے، جب مہمان کو عزت و احترام سے یہاں لے آؤ۔ یہاں چاند طلوع ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا۔ پنڈت کالی داس کے منہ سے عجیب سی سرسراتی ہوئی آواز نکلی تو دونوں میں سے ایک پجاری پلٹا اور کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کالی داس نے نعمانی کی طرف دیکھا اور پھر جولیا پر اس کی نگاہیں جم گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی خوفناک چمک دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جولیا کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ کر رہ گئی تھی اور اس نے بے اختیار نگاہیں جھکا لیں۔ اے لڑکی، تمہارا اس ناب کا عمران سے کیا تعلق ہے جو تم اس کے لیے اس قدر پریشان ہو رہی ہو؟ دفعتاً کالی داس نے جولیا سے پوچھا تو جولیا کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ کالی داس کو اس کی کیفیت کا اندازہ کیسے ہوا۔ عمران میرا ہمدرد اور ساتھی ہے، جولیا نے سنبھل کر آہستہ سے کہا۔ تمہارا نام جولیا ہے نا؟ پنڈت کالی داس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جولیا کے جواب پر اس کے مکروح چہرے پر غصے کی کیفیت نظر آنے لگی تھی۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں بیوقوف لڑکی، مجھے ابھی میری غلام روح نے بتایا ہے کہ تم اس اپرادھی عمران کے عشق میں مبتلا اور اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دینا چاہتے ہو، لیکن تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے میں تمہارے محبوب کی گردن کاٹوں گا اور اس کے خون سے غسل کروں گا، مگر تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ عمران کی موت کے صدمے سے تمہاری جان نکل جائے گی، اور اگر تم زندہ رہ گئی تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھی کو جنرل براؤن کے حوالے کر دوں گا۔ اسے درخواست کی ہے کہ تم دونوں کو ہلاک کرنے کی بجائے اس کے حوالے کر دوں تاکہ وہ تم سے تمہارے بقیہ مفرور ساتھیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کر کے انہیں گرفتار کرے اور پھر تم پانچوں کو شہر میں عوام کے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ کالی داس نے مسلسل بولتے ہوئے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا تو جولیا ایک لمحے کے لیے سہم کر رہ گئی۔ نعمانی بھی خوفزدہ نگاہوں سے کالی داس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سنو خبیث آدمی، اگر تمہیں میرے بارے میں جو کچھ معلوم ہو گیا ہے تو مجھے آزاد کر دو، پھر میں دیکھوں گی کہ تم کیسے عمران کو قتل کرتے ہو، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ دفعتاً جولیا نے کسی زخمی شیرنی کی مانند گرجتے ہوئے کہا تو کالی داس نے چونک کر جولیا کی طرف حیرت سے دیکھا اور دوسرے لمحے غیظ و غضب سے اس کی آنکھیں شعلہ بار ہو گئی۔ مہاراج، کیا میں اس بد زبان ناری کی زبان کاٹ ڈالوں؟ ساتھ کھڑے پجاری نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں سیوک، یہ زبان نہیں، اس کی جوانی بول رہی ہے، اور جوان کا جوش جنرل براؤن کے آدمی ختم کر دیں گے۔ کالی داس نے جولیا کو گھورتے ہوئے درندگی بھرے لہجے میں کہا تو جولیا نے جواب میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی لمحے قدموں کی آہٹیں سنائی دی اور کالی داس دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ نعمانی اور جولیا بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ دروازے سے گوپی رام پجاری اندر داخل ہو رہا تھا، اس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر بلڈاگ شکل اور چند دوسرے افراد تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کی نعمانی اور جولیا نے فوراً پہچان لیا تھا، وہ کرنل راجیش تھا۔ اس کا دایاں بازو زخمی تھا جس پر ہاتھ سے لے کر کندھے تک بینڈیج دکھائی دے رہی تھی۔ گوپی رام کے پیچھے وہ لوگ بھی اندر آ گئے اور گوپی رام دوسرے پجاری کے پاس جا رکا۔ ادھیڑ عمر شخص یقیناً جنرل براؤن تھا۔ اندر آ کر ان سب نے ہاتھ باندھ کر پنڈت کالی داس کو پرنام کہا۔ سوامی کالی داس نے بھی انہیں پرنام کہا اور آگے بڑھا۔ وہ فرش پر بے ہوش پڑے عمران کے پہلو میں آ کر رکا اور جنرل براؤن نے بڑھ کر کالی داس کے قدموں کو چھوا تو پنڈت کالی داس نے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا اور جنرل براؤن سیدھا ہو کر ایک طرف ہٹ گیا۔ جنرل براؤن کے بعد اس کے ماتحتوں نے بھی کالی داس کے قدم بوسی کی۔ کرنل راجیش، تمہارے بازو کو کیا ہوا؟ پنڈت کالی داس نے کرنل راجیش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مہاراج، عمران نے میرا بازو گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا، مرتے مرتے بچا ہوں۔ کرنل راجیش نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم تو بچ گئے ہو، لیکن یہ نابکار نہیں بچے گا موت سے، اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ اچھا ہوا جنرل
پران کے ساتھ تم بھی آ گئے۔ اب دیکھو میں اپنے ملک قوم اور دھرم کے اس دشمن کو کیسے ذبح کرتا ہوں۔ اس کا لاشا تڑپتے دیکھ کر تم خوشی کے مارے اپنی تکلیف بھول جاؤ گے۔ اس کے بعد میں چند لمحوں میں تمہارا زخم ٹھیک کر دوں گا۔ پرنٹ کالی داس نے مکرو انداز میں ہنستے ہوئے کہا، لیکن مہاراج عمران تو بے ہوش ہے، یہ کیسے تڑپے گا؟ کرنل راجیش نے مسکراتے ہوئے کہا، لچھمن داس عمران کو ہوش میں لاؤ۔ پرنٹ کالی داس نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے تہمکانہ لہجے میں کہا تو سب لوگ کی نگاہیں عمران پر مرکوز ہو گئیں۔ ایک لمحے بعد عمران کی آنکھوں میں حرکت ہوئی اور وہ آنکھیں کھول کر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے سر گھما کر آس پاس کا جائزہ لیا اور وہ چونکتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ میں کہا ہوں، تم لوگ کون ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں پرنٹ کالی داس ہوں، اپرادھی۔ پرنٹ کالی داس نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا، تم اپرادھی ہو؟ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، تمہیں اپرادھی کہا ہے میں نے، اور تم نے میری قوم کے نوجوانوں کو قتل کرنے کا گناہ کیا ہے۔ پرنٹ کالی داس نے کراتے ہوئے کہا، لیکن یہ باقی لوگ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ پرنٹ کالی داس عمران نے جنرل پران اور اس کے پیچھے کھڑے افراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری موت کا نظارہ کرنے کے لیے، چلو اپنا سر اس پتھر پر رکھ دو۔ کالی داس نے کراتے ہوئے کہا، رحم کرو مہاراج، میں بہت کمزور آدمی ہوں، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ عمران نے قبضہ لہجے میں کہا، آج تمہاری شادی موت کے ساتھ ہوگی اور تمہاری اس جولے سے کرنل راجیش شادی کر لے گا۔ کالی داس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، جولیا کیوں مذاق کرتے ہو مہاراج؟ کالی گھاس۔ عمران نے بوکھلا کر ہکلاتے ہوئے کہا، مہاراج نیا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ دفعتاً گوپی رام نے پرنٹ کالی داس سے کہا، تو نے میرا نام بگاڑا ہے نابکار، میرا نام کالی داس ہے۔ کالی داس نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا، معاف کرنا چچا۔ کالی ناس زبان پھسل گئی تھی۔ عمران نے دوبارہ اس کا نام بگاڑتے ہوئے کہا، گوپی رام خنجر نکالو، میں اسے اپرادھی کو ذبح کرتا ہوں تاکہ دوبارہ کسی کی زبان نہ پھسل سکے۔ کالی داس نے گوپی رام کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا، تو گوپی رام نے پیچھے ہٹ کر دیوار میں واقع ایک چوکور سوراخ میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک دو دھاری خنجر نکالا اور آگے بڑھ کر پرنٹ کالی داس کو پیش کر دیا۔ یہ خنجر تلوار سے قطعے چھوٹا تھا اور اس کی دونوں دھاریں چمک رہی تھیں۔ چلو اس کے ہاتھ باندھو اور قربان گاہ پر اس کا سر رکھ دو۔ پرنٹ کالی داس نے خنجر اپنے ہاتھ سے لیتے ہوئے حکم دیا تو گوپی رام اور دوسرا پجاری ایک ساتھ عمران کی طرف بڑھے۔ جنرل پران اور اس کے ماتحت دروازے کے آگے کھڑے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ٹھہرو ٹھہرو، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے بوکھلا کر کہا، ہاں، میں تو تمہیں اذیت ناک طریقے سے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن دیوتا کی بھیٹ دینے کا سب سے اچھا سمے یہی ہے، کیونکہ نیا چاند طلوع ہوتے ہی دیوتا کو بھیٹ دی جائے تو وہ دیوتا قبول کر لیتے ہیں۔ پرنٹ کالی داس نے سر ہلاتے ہوئے قوسے لہجے میں کہا، کیا تمہیں تمہارے دیوتا نے یہ بھی کبھی نہیں یہ بات سمجھائی کہ مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے؟ عمران نے غصے سے کہا، تمہاری آخری خواہش یہی ہوگی کہ تمہاری جان بخشی کر دی جائے؟ جنرل پران نے عمران کو گھورتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، نہیں جنرل پران، میں زندگی نہیں موت چاہتا ہوں تاکہ بدرو بن کر تم سب کا خون پی جاؤ۔ عمران نے کہا، شٹ اپ، میرا نام پکوان نہیں ہے عمران۔ پر جنرل پران نے کراتے ہوئے کہا، بولو کیا چاہتے ہو؟ آخری خواہش بتا دو۔ پرنٹ کالی داس نے سخت لہجے میں کہا، میں جولے سے آخری مرتبہ دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ عمران شرمائے ہوئے سر جھکا کر کہا تو نعمانی کو حیرت ہوئی، سب کے جولے بھی سٹ پٹا گئے کہ آخر عمران اتنے خطرناک لمحات میں کیوں حماقتیں کر رہا ہے؟ تو کر لو بات، تمہاری آواز وہ سن رہی ہے۔ کالی داس نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں مہاراج، دل کی بات ہے اور یہاں سب نامحرم کھڑے ہیں، میں جولے کے کان میں کہوں گا۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا، جلدی جاؤ، جلدی کرو، بھیٹ دینے میں دیر ہو رہی ہے۔ کالی داس نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو عمران پلٹ کر جولے کی طرف بڑھا اور اس کے پہلے میں ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں موجود تمام افراد کی نگاہیں عمران پر مرکوز تھیں۔ عمران نے اپنا منہ جولے کے بائیں کان کے قریب کر لیا تھا۔ چلو اب میرے مرنے والا ہوں، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کی پرورش اچھی طرح کرنا اور انہیں اس مندر کے پجاری کے مقابلے پر لے آنا تاکہ وہ کالی داس کی روح سے میرا انتقام لے سکیں۔ عمران نے سرگوشی کرنے کی بجائے بلند آواز میں کہا، اور تمہارے بچے وہ کہاں ہیں؟ کالی داس نے چونکتے ہوئے کہا، دروازے کے باہر۔ عمران نے بائیں ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سب لوگوں کے چہرے دروازے کی طرف گھوم گئے اور عمران نے پھرتی سے دوسرا ہاتھ جیب میں ڈال کر مشین پسٹل نکالی، خبردار کہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ اسی لمحے دروازے کے باہر کھڑے صفدر کی آواز سنائی دی اور اس نے یکدم سامنے آ کر اندر کھڑے جنرل پران اور اس کے ساتھیوں پر مشین پسٹل تان لیا۔ اوہ تم کون ہو؟ جنرل پران نے صفدر کو گھورتے ہوئے پوچھا تو دروازے کے دائیں سے تنویر اور صدیقی نے بھی سامنے آ کر ان پر مشین پسٹل تان لیا۔ یہ میرے ساتھی ہیں جنرل پکوان، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرنل کالی داس سمیت سب نے عمران کی طرف دیکھا ہی تھا کہ عمران نے کالی داس کی طرف مشین پسٹل کا رخ کرتے ہوئے فائر کر دیا۔ گولی کی خوفناک تھرتھراہٹ سے کمرہ گونج اٹھا اور پرنٹ کالی داس چیختا ہوا فرش پر گرتا چلا گیا۔ اس کی دوسری طرف کھڑے دونوں پجاری بھی زخمی ہو کر فرش پر تڑپنے لگے۔ جنرل پران کے چاروں ماتحتوں سے پھرتی سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہی تھے کہ باہر کھڑے تنویر، صدیقی اور صفدر کے مشین پسٹل یکدم انگارے اگلنے لگے اور وہ چاروں چھلنی ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ جنرل پران اور کرنل راجیش نے سامنے والے ستونوں کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن عمران کی مشین پسٹل تھرتھراہٹ کی آوازیں سنائی دی اور کرنل راجیش کی ٹانگوں میں کئی سوراخ ہو گئے، جبکہ جنرل پران بھی چیخ کر منہ کے بل گر گیا تھا۔ اس کی ایک راہ میں گولی لگی تھی۔ صفدر، تنویر اور صدیقی اس دوران اندر آ گئے تھے۔ ناصر علی کہاں ہے؟ عمران اس کی طرف دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا۔ باہر راہداری میں پہرا دے رہا ہے تاکہ مندر کے باہر بیٹھے پجاریوں کو روک سکے، صفدر نے کہا، اور اسی لمحے راہداری سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ شاید ناصر علی نے مندر میں داخل ہونے والے پجاریوں کو ڈھیر کر دیا تھا۔ عمران آگے بڑھا اور جنرل پران کے پاس آ کر رکا جو فرش پر کراتا ہوا خوفزدہ نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صفدر اور تنویر خنجر نکال کر نعمانی اور جولے کے گرد لپٹی رسیاں
आंखें काटने लगे। जनरल प्रॉन, तुम यहाँ मेरी मौत का नजारा करने आए हो, अब तुम्हें मरने होते हुए कौन देखेगा? इमरान ने जनरल प्रॉन के चेहरे की तरफ मशीन पिस्टल का रुख करते हुए कहा तो जनरल प्रॉन का चेहरा खौफ के मौत से घबराने लगा। बोलो, तुम जैसे बुज़दिल गध को काफिर सीक्रेट सर्विस का चीफ किसने बनाया, जो इंसानी ताकत के बजाय मावरे ताकतों से यकीन रखता है? बेशक पंडित कालिदास मावरे अलूम का माहिर और शैतानी कुव्वतों का मालिक था, लेकिन शैतान के मुकाबले में इंसान ज्यादा ताकतवर है। इसका सबूत कालिदास की लाश की सूरत में तुम्हारे सामने मौजूद है। इसे इसी के शैतानी कुव्वतें और गुलाम रूहें भी मेरे हाथों मरने से नहीं बचा सकी। इस तरह तुम्हें न सिर्फ अपने हुक्मरानों के प्लान में नाकामी हुई, बल्कि तुम्हारे 10-12 मातहत भी मारे गए, लेकिन तुम्हें मैं जिंदा अपने मुल्क ले जाऊंगा। इमरान जनरल प्रॉन को घूरते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। क्यों? जनरल प्रॉन ने खौफ की शिद्दत से हकलाते हुए कहा। इससे कि जैसा तुम्हारा प्लान था कि हमें गिरफ्तार करके अपने हुक्मरान और मीडिया के सामने पेश करके दुनिया पर पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस की बहादुरी का सिक्का जमाओगे, लेकिन तुम्हें पाकिस्तान का मीडिया अपने चैनल्स के जरिए दिखाएगा कि तुम लोग किस तरह पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ प्लान बनाते हो और तुम्हें शर्मनाक शिकस्त उठाना पड़ती है। इमरान ने जहरीले लहजे में कहा और एकदम झुककर जनरल प्रॉन के सर पर मशीन पिस्टल का दस्ता मार दिया। जनरल प्रॉन के हलक से दबी दबी से चीख निकली और इस पर बेहोशी तारी होती चली गई। इसलिए मैं नासिर अली हाथ में मशीन पिस्टल लिए कमरे में दाखिल हुआ। क्या पोजीशन है बाहर की? इमरान ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। चंद पुजारियों ने अंदर आने की कोशिश की थी, जिन्हों में मैंने खत्म कर दिया था, जबकि फायरिंग का शोर सुनकर बाहर मौजूद यात्री भाग गए थे। अब बाहर कोई नहीं है। नासिर अली ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या तुम दोनों ठीक हो? इमरान ने पलट कर जोला नुमाइंद से पूछा। हाँ। जोले ने इमरान की तरफ गहरी तरी नजरों से देखते हुए कहा और इमरान दिल ही दिल में जलकर विरद कर रहा था। इमरान साहब, क्या आप वाकई बेहोश थे या एक्टिंग कर रहे थे? नुमानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, अगर मैं बेहोश होता तो पहले ही कालिदास की गर्दन तोड़ चुका होता। तुम्हें बदरूहों ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, अलबत्ता कोई दहशत ज़दा किया था, नुमानी ने जवाब दिया। अच्छा, बाकी बातें सफर के दौरान होगी। जनरल प्रॉन को उठाकर बाहर ले चलो, अगर इनकी रान पर पट्टी बांध दियो तो, ताकि खून बहने से ये खत्म ना हो जाए। और नासिर अली, चूंकि इस वाक़े का किसी को इल्म नहीं है, इसलिए जब तुम्हें जंगल से बाहर तुम्हारी गाड़ी के पास छोड़ देंगे और हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान चले जाएंगे, तुम दारुल हुकूमत पहुंचकर ट्रांसमीटर पर मुझे अपनी ख्वाहिश से मुतला कर देना। इमरान ने इन्हें हिदायत देते हुए कहा। बहुत बेहतर, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स आपको सरहद के पास जाने देंगे? नासिर अली ने सर हिलाते हुए पूछा। कोई मसला नहीं, अव्वल तो किसी को पता नहीं है कि हम सरहद के पार जाना चाहते हैं, दूसरा एयरफोर्स वालों को इल्म है कि ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इस्तेमाल में है। फिर अगर फायर एयरफोर्स वालों ने पूछगीछ की तो जनरल प्रॉन के हेलीकॉप्टर मौजूदगी से वो मुतमईन हो जाएंगे और सरहदी पार हमारी हिफाजत के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारी भी घेरे में ले लेंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर चंद लम्हों बाद वो मंदिर की राहदारी में पड़ी 6-7 पुजारियों के खून में लथपथ लाशों को फैलाते हुए मंदिर के दरवाजे से बाहर आए तो वहां कोई जीरो मौजूद नहीं था। वो सब हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। बेहोश जनरल प्रॉन का हेलीकॉप्टर के अगले हिस्से में फर्श पर डाल दिया गया। इमरान की हिदायत पर सफदर ने पायलट सीट संभाली, जबकि इसके साथ वाली सीट पर इमरान ने खुद बैठ गया और सफदर ने इंजन स्टार्ट करके हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद कर दिया। नासिर अली की निशानदेही पर सफदर हेलीकॉप्टर को जंगल के इस सिमत में लाया जहाँ जंगल के बाहर एक कच्ची सड़क पर नासिर अली की कार मौजूद थी। सफदर ने रास्ते से जरा हटकर खुली जगह पर हेलीकॉप्टर उतारा और नासिर अली के उतरने के बाद हेलीकॉप्टर दोबारा बुलंद करके इसका रुख मगरिब की जानिब कर दिया। इमरान ने जेब से लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाला और इस पर एक्स्ट्रा की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके कॉल करने लगा। हेलो चीफ, इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने एक्स्ट्रा को कॉल करते हुए कहा। एक्स्ट्रा अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक्स्ट्रा की मखसूस आवाज सुनाई दी तो इमरान ने वक्त ज़ाया किए बगैर एक्स्ट्रा को मिशन की तकमील और टीम की वापसी के बारे में बता दिया। ठीक है, मैं एयर चीफ को हिदायत देता हूँ, एयरफोर्स की तैयारी सरहद पर तुम्हारे मुंतजिर रहेंगे। ओवर दूसरी तरफ से ब्लैक ने एक्स्ट्रा के मखसूस लहजे में कहा। राइट सर, आप सुलेमान को वापस फ्लाइट पर पहुंचने की हिदायत दे दें ताकि वो मेरे पहुंचने से पहले घर को सजा ले और मूंग की दाल पका ले। कल शाम से मैं जोलिया और नुमानी भूख के मारे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ओवर इमरान ने यकदम पटरी से उतरते हुए कहा। तो क्या तुम्हें कैद के दौरान खाना नहीं दिया गया? ओवर एक्स्ट्रा ने पूछा। खाना तो दिया गया था, लेकिन वो जहन्नमी खाना सिर्फ तनवीर और सुपर फ्याज जैसे लोग ही हजम कर सकते थे। ओवर इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, क्या था खाने में? ओवर एक्स्ट्रा ने पूछा। जबकि तनवीर इमरान को घूरने लगा। बता दिया तो अभी सफदर क्या करने लगेगा? वो जख्मियों को पीप और जिंदा बच्चों का खाना खिलाया जाता है और 1 मिनट से पहले इनकी जिसामत बढ़कर चूहों के बराबर हो गई थी। ओवर इमरान ने कहा तो तमाम मेंबर मुस्कुराने लगे। ठीक है, मैं एयर चीफ को कॉल करता हूँ। ओवर एंड एक्स्ट्रा ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तनवीर गुस्से से इमरान की तरफ देख रहा था। आसपास बैठे सदीकी, नुमानी और जोलिया इसके तासुरात देख रहे थे। नुमानी, क्या तुम्हें भी खाना दिखा गया था? सदीकी ने नुमानी से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पीने के लिए खून से भरा कोजा और खाने के लिए चावल जो दरअसल सफ़ेद कीड़े थे, नुमानी ने हंस कर कहा और तफसील बताने लगा। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नावल के आखिरी हिस्से का। ये नावल आपको कैसा लगा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो